सीतापति राम 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 श्री राम 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 सीताराम राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा। जय जानकी कांत स्मरण जय जय राम राम। हर नम पार्वती पदे हर नम पार्वती पदे हर महादेव। सिद्धि विनायक स्वामी की जय। सिद्धि विनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सकल साधु मंडल की जय। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्प्यान् रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान् परम बाहवदान् स्मरामि। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। ஸ்ரீயப்பதியான சீதாராமுடைய பூர்ணானுகிரக விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த மூலப்பராயண யஜ்ஞத்துல ஸ்ரீமத் பாகவதம் நம்ம நேற்று துருவ சரித்திரத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ புது சரித்திரம் பாராயணம் பண்ணோம். ராம 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 ராம. நம்ம ஒரே நாள் மொத்தம் இந்த 7 நாள் சப்தாக முறைப்படி மொத்தமாக நம்மளால் பாராயணம் பண்ண முடியல. நம்மளால எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் இல்லையா? நம்ம ஸ்டெமினா எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ பண்ண முடியும். ஏக்தம்னு ஒரே நாளில் நிறைய படிக்கணும்னா முடியாது. அதனால் பிரித்து படிக்கிறோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நேற்று துருவ சரித்திரத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அடுத்தது புது சரித்திரம்லாம் வரப்போகிறது. புரஞ்சன பாக்கியம் எல்லாம் வரப்போகுது. அதெல்லாம் படிக்கலாம், பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ராம. ரிலாக்ஸாக படிக்கணும், அப்போ தான் நல்லா படிக்க முடியும். சும்மா ஆசை புதுசான்னு படித்து அம்மா முடியாமலாம் படிக்கிறதுக்கு ஆசை போயிடும். நிறைய படிச்சிட்டோம்னா மறுநாள் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ரிலாக்ஸாகவே எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ படிக்கலாம். சுதர்மா ஆச்சரணம் சக்தியா, நம்ம சக்தி உள்ள மட்டும்தான் கடைபிடிக்க முடியும், படிக்க முடியும். 2 பேர் இருந்தாங்கன்னா ஆளுக்கு ஒரு அத்தியாயம் படித்து அப்படியே டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். அப்படியே முடிக்க முடியாது. ஸ்ரீராம ராம 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 ராம. அது அதாவது பகவானுக்கு எல்லாம் அலங்காரம் பண்றதுக்குள்ள டைம் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்றது?
மொத்தம் நம்ம எப்படியாவது ஆரம்பிச்சிட்டோம், கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக செய்ய முடியும். எல்லா வேலைகளும் பண்ணிட்டு தான் மூலப்பராயணம் பண்ணணும். சாதாரண விஷயம் இல்லை, நிறைய வேலைகள் இருக்குது. அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் மூலப்பராயணம் ஆரம்பிக்கணும். அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் சப்தாகம் வச்சுருந்தா தெரியும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குன்னு. சொல்கிறேன், ஒரு பேச்சு சொல்கிறேன். அது கஷ்டம் இல்லை, அது பகவானுக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். நம்ம உடம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கும், ஒரு வேலை செய்த மாதிரி இருக்கும். அது பகவானுடைய கைங்கரியமாகவும் இருக்கும், மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். பகவத் கைங்கரியம்னு சொல்லும் போது அது மனசுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துரும். அது சரி. இப்போ நம்ம பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ராம. இப்போ வந்து நம்ம துருவ சரித்திரத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். நாலாவது ஸ்கந்தம். பௌர்ணமி போன்ற தினங்கள்ல ஞாயிற்றுக்கிழமையில இந்த துருவ சரித்திரம் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமா. இது நிறைய பலன்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தன்யம், யசஸ்யம், ஆயுஷ்யம், சொர்க்கலோக பலன், சௌமனசியம், குடும்பத்துல ஒற்றுமை உண்டாகுமா, மனஸ்தாபங்கள்லாம் நீங்குமா, குடும்பத்துல நிறைய விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல. அதே சமயத்துல உயர்ந்த நிலை உயரணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு மகத்துவம் நிச்சயதான். உயர்ந்த நிலை நமக்கு சித்திக்கணும், உயர்ந்த நிலை பக்தியில உயர்ந்த நிலைக்கு போகணுன்றவங்களுக்கு ஆசைப்படுறவங்க நிச்சயமா துருவ சரித்திரத்தை படிக்கணும். ரொம்ப விசேஷம். தேவரெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்களாம். இந்த துருவ சரித்திரத்தை யாரு தெரியாதவங்களுக்கு இந்த துருவ சரித்திரத்தை எடுத்து சொல்றாங்களோ அவங்க இடத்துல தேவரெல்லாம் அனுகூலமா இருக்கிறாங்களாம். கிருபாலுபிர் தீனநாதஸ்ய தேவாஸ் தஸ்ய அனுகிரகணதே. தேவரெல்லாம் அனுகிரகம் பண்றாங்க. யாருன்னா ஞானம் அஜ்ஞாத தத்வாய யோ தத்யாது சத்பதி அமிர்தம். அப்படியேப்பட்ட யாரு தெரியாதவங்களுக்கு இந்த துருவ சரித்திரத்தை எடுத்து தானம் பண்றாங்களோ சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு தேவரெல்லாம் அனுகிரகம் பண்றாங்களாம். எல்லா தேவரெல்லாம் சந்தோஷம் அடைகிறாங்களாம். அவ்வளவு விசேஷமான சரித்திரம் இது. சரி, அடுத்தது ஸ்ரீமத் பாகவதே சதுர்த்த ஸ்கந்தம். 4வது ஸ்கந்தம் 12வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 13வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணோம். அதை திரையோதச அத்தியாய சோதுவாச்ச. நான் எவ்வளோ ஸ்லோவாக படிக்கணும்னு தான் பார்க்குறேன், ஆனால் அது வந்துடுது அப்படியே ஃப்ளோவில் ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடுது. படிக்கலாம். ராம 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 கோபிகாட்சி கோவிந்தா கோவிந்தா குருநாதா. எனக்கு பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார சுவாமி தான் பாகவதத்துக்கு விதை போட்டதே. அவர் இல்லைன்னா எனக்கு பாகவதம்னா என்னன்னு தெரியாது. பாகவதம் இவ்வளவு ருச்சியா இருக்குமா, இந்த அளவுக்கு ஸ்லோகமா படிப்புமா அப்படின்னு அந்த மகாத்மாவுடைய பூர்ண கருணா கடாட்சம், அவருடைய அனுகிரகம் தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு ஸ்லோகமா படிக்க முடியுதுன்னா அந்த மகாத்மா போட்ட பிச்சை. அந்த மகாத்மாவுடைய அனுகிரகம். பகவான் எனக்கு பரம குரு யாருன்னா பகவான் தான். அடுத்தது பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார சுவாமி வாக்குல தான் பாகவதம் கேட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி ராமாயணம் தெரியும். அடிக்கடி ஒரு பள்ளி வந்து போயினுக்குது. கரெக்டா அந்த டைம்ல வந்து போயினுக்குது ஒரு பள்ளி. அது எப்படி இருந்தாலும் வரும். அது மாதிரி பகவான் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் இருக்கும் இல்லையா, பள்ளி. ஒரு நாள் வருவாள் வரதராஜ பெருமாளே வராருன்னு போவோம். அடிக்கடி அந்த பள்ளி வந்து போகுது. அது மாதிரி பகவான் நேற்று பார்த்தா முந்தினேத்தம் அது பாட்டுக்கு பாவதம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பத்தி படிச்சுன்னு இருக்கேன். அந்த சந்தில புஷ்பம் பாட்டுக்கு அப்படியே விழுந்துட்டே இருக்கு. புஷ்பம் விழுந்துட்டே இருக்கு. அப்படியே ஆச்சரியமா ஆயிடுச்சு. பகவானுடைய அனுக்கிரகம் அப்படிதான் நம்மளுக்கு காண்பிப்பான் பகவான் அந்த சிம்டம்ஸ். இந்த பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு விதைப்படுது ஏன்னா பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார சுவாமி தான். அதை மறுக்கவே முடியாது. அவர்கள் தான் முதல் 18th மேன்ல அண்ணா நகர்ல பாகவதம் கேட்டேன். பாகவதம் இவ்வளவு சுவையான. நான் ஒரு டைம்ல ஏங்கியிருக்கேன். RSSல எங்க அப்பாவுக்கு பகவத்கீதை கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பகவத்கீதையை நான் படிச்சிருக்கேன். பகவத்கீதை படிச்ச உடனே அதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரோடக்ஷன்ல என்னன்னா மகாபாரத கதை சுருக்கமா கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ கிருஷ்ணன் லீலைகள் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்ட்டு ராமகிருஷ்ணருடைய உபதேசம் பார்த்தா கீழே கிருஷ்ண லீலைகள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கு கீழே கொடுக்கும்போது அதுல ராமகிருஷ்ணர் உபதேசம் கொடுப்பாங்க. அந்த ராமகிருஷ்ண உபதேசம் கிருஷ்ணன் லீலைகள் புரிந்திருக்கான் போல, பெண்களுடைய ஆடைகள்லாம் திருடிருக்கான், அது போல வெண்ணெய் திருடிருக்கான், வெண்ணெய்கள்லாம் திருடுவான் அப்படின்னு இந்த கிருஷ்ண லீலைகள்லாம் கேட்ட உடனே இதெல்லாம் சின்ன வயசுல எங்க மாமாவில் கேட்டது. இந்த கதைகள்லாம் மகாபாரதத்தில் இருக்காது.
இது எங்க கிடைக்கும் எனக்கு பாகவதம் அப்போ தெரியாது. ஆர்எஸ்எஸ்ல வந்து கொடுத்த அந்த பகவத்கீதை படிக்கும்போது என் அப்பா கொடுத்தாங்க. அதை நான் பகவத்கீதை படித்தேன். ஃபர்ஸ்ட் படித்த புஸ்தகம்னா பகவத்கீதை தான். பகவத்கீதை படித்தவொடனே இதெல்லாம் படித்தவொடனே அந்த ராமகிருஷ்ண கீழே உபதேசம் போட்டுருவோம். அதில் தான் அவருடைய கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள், கிருஷ்ணனுடைய கதைகள்லாம் போடுவார். அப்போ ஒரு பருக்கு கீரை உணவு சாப்பிட்டு திரௌபதியினுடைய கஷ்டத்தை நீக்கினாரு, துர்வாசருடைய பசிகள்லாம் போக்கினாரு அப்படின்னு அந்த கதைலாம் வரும். அது எங்கேயோ படிச்சிருக்காங்க. அதை படித்தவொடனே சரி இதெல்லாம் வந்து மகாபாரதத்தில் வராது, இந்த கிருஷ்ண லீலைகள்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை. கிருஷ்ணன் சின்ன வயசுல நிறைய லீலைகள்லாம் பண்ணியிருக்கானுமே. அப்புறம் கோவர்த்தன உத்தாரணம் பண்ணிக்கிறான், காளிநத்தனம் பண்ணிக்கிறான். இதெல்லாம் எங்கள் மாமாக்களுக்கு கேட்டது சின்ன வயசுல. இதுக்கு புஸ்தகம் கிடைக்குமானா புஸ்தகம் கிடைக்காதுன்ட்டாங்க. மகாபாரதம் பாண்டவருடைய சரித்திரம் தான் கிடைக்கும். கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள்லாம் அவ்வளோ பெருசாக இருக்காது அதில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ சோ எழுதின மகாபாரதம், அந்த மகாபாரதம் 2 பாகமாக வந்தது. அதை கொஞ்சம் படிச்சு பார்த்தேன். அதில் கூட அந்த கிருஷ்ண லீலைகள்லாம் கிடையாது, எல்லாம் அந்த மகாபாரத கதை தான். பத்திரிகாசிரியர் இருக்கார் இல்லையா, சினிமா நடிகர் அவர் எழுதின மகாபாரதம். அதை வந்து ஹிகின் பாதம்ஸ்ல போய் படிச்சு பார்த்தேன். அங்கே புஸ்தகம் எடுத்து படிக்கலாம். படிச்சு பார்த்தா அதெல்லாம் அந்த கிருஷ்ண லீலைகள்லாம் கிடையாது. சரி என்ன பண்றது, கிருஷ்ண லீலைகள்லாம் ஓணுமே எனக்கு. அவன் சின்ன வயசுல பண்ண லீலைகள்லாம் கேட்கணும் ஆசையா இருக்கும். அப்போ நான் அப்படியே அந்த பசியிலே இருந்தேன். அப்போ இந்த பகவத்கீதையை மட்டுமே படிச்சுருப்பேன். அந்த பகவத்கீதையில கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள்ல அந்த விஸ்வரூபம் தர்சனம் இருக்கு இல்லையா, 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூபம். அதை பார்த்த உடனே அப்படியே மனசுல அப்படியே தியானம் ஆயிடும். அந்த சித்பாவனந்தர் போட்ட புஸ்தகம் தான் அது. ராமகிருஷ்ண மடத்துல போட்ட சித்பாவனந்தர் புஸ்தகம் தான் பகவத்கீதை. அது வந்து ஆர்எஸ்எஸ்ல என் அப்பா கொடுத்தாங்க. அந்த பகவத்கீதை படிக்கும்போது முதல்ல வந்து அர்ஜுனன் சாரத்தியம் பண்ற மாதிரி ஒரு படம் இருக்கும். அந்த பகவத்கீதை புஸ்தகம் வச்சிருக்கேன். அதான் ஃபர்ஸ்ட் படிச்ச புஸ்தகம். அது அந்த கிருஷ்ணனை அந்த பாத்சாதி பார்க்கும்போது ஆசையா இருக்கும். இவரை பத்தி லீலைகள்லாம் கதைகள்லாம் தெரிஞ்சுன்னு ஆசையா இருக்கே. இது எங்க கதை இருக்கு, வெறும் உபதேசமா இருக்கே பகவத்கீதை, கதை கிடைக்கலையேன்னு சொல்லிட்டு வருத்தமா இருக்கும். ஏன்னா என் மாமா அங்க சின்ன வயசுல கதைலாம் சொல்லியிருக்காங்க, என் அப்பா அம்மாலாம் கதை சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ண லீலைகள்லாம். ஆனா அதை படிக்கிறதுக்கு புஸ்தகம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன். அந்த சமயத்துல அந்த ஏக்கத்திலேயே இருந்தேன். கிருஷ்ண லீலைகள் கிடைக்கும், அவன் கோவத்தெல்லாம் உத்தாரணம் பண்ணிக்கலாம், காளிநத்தனம் பண்ணிக்கிறாங்க, வஸ்திராபரணம் பண்ணிக்கிறான், மிருதபக்ஷன் லீலை, வாயில உலகம். அப்பெல்லாம் மிருதபக்ஷனா காளிநத்தனம் அப்படின்லாம் தெரியாது. மலையெல்லாம் தூக்கிறானவன், பாம்பெல்லாம் அடிக்கிறானவன், அந்த கதைலாம் கேட்கணும். அதெல்லாம் என் மாமாக்கள் கேட்டிருக்கேனே. அதுக்கெல்லாம் கதை கிடைக்குமா பெருசு, அதெல்லாம் விஸ்தாரமா தெரிஞ்சுன்னு ஆசையா இருக்கே. அது புஸ்தகம் கிடைக்குமான்னு ஏங்கினேன். அப்ப ஏங்கும் பொழுதுதான் அந்த ஏக்கம் அடிக்கடி இந்த பகவத்கீதையில் உள்ள அந்த விஸ்வரூபத்தையே நினைச்சு பகவான் அப்படியே பெரிய ரூபா எடுக்கிற மாதிரி அப்படியே ஒரு தியானம் பண்ணுவேன். அப்படியே தியானம் பண்ணுவேன். அந்த கற்பனையில கிருஷ்ணன் பார்த்தா பெரிய ரூபா எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அர்ஜுனுக்கு அப்படியே விஸ்வரூபம் பார்த்தா அர்ஜுனன் பார்த்து அப்படியே பயந்து நடுவோம். போதும் உனக்கு முன்னாடி நமஸ்காரம், பின்னாடி நமஸ்காரம், சைட்ல நமஸ்காரம் எல்லாம் சொல்லிட்டு ததிகலம் தான் தாளம் போடுவான் அர்ஜுனன். வேணாப்பா, நீ உருவத்தை சுருகிடு, இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கறது சக்தி எனக்கு கிடையாது அப்படின்ட்டு இத்தனை ஞான கண்ணை கொடுத்து அர்ஜுனுக்கு அதை பார்க்க சக்தி இல்லைன்ட்டான். அப்ப சொல்றாரு, நான் ஏற்கனவே பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன், சல்லியன் எல்லாரையும் நரநரன்னு போட்டு வாயில பார்த்தா பெரிய வாயை காட்டி அதுக்குள்ள எல்லாரையும் மெல்லுவார். கர்ணன், பீஷ்மர், துரோணர், சல்லியன், துரியோதனன், துச்சாதனன் எல்லாரையும் போட்டு மெல்லிடுவார். எல்லாரையும் சஃபா பண்ணி, நான் ஏற்கனவே எல்லாரையும் வதம் பண்ணியாச்சு, நீ நிமித்த மாத்திரமா இருந்து சண்டை போடு அப்படின்னு அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்றாரு. அந்த 11வது அத்தியாயம் மறக்க விஸ்வரூப தர்சனம் 11வது அத்தியாயம் மறக்கவே மாட்டேன். திருப்பி படிப்பேன். ஏன்னா அதுல ஒண்ணுதான் அதுல லீலை பண்றாரு பகவான். பகவத்கீதையில ஒரு லீலை இருக்குன்னா அது விஸ்வரூப தர்சனம் தான். பகவான் விஸ்வரூபம் எடுக்கிறது, அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்றது, அது உபதேசமா இருக்காது, விஸ்வரூபம். அப்ப சொல்றாரு, இந்த ரூபத்துல வந்து தேவர்லே பார்க்கறது ஆசைப்படுறாங்க, நீ என் பக்தனாவும் நீ என் நண்பனாவும் இருக்கிறதுனால தான் உனக்கு இந்த ரூபத்தை காண்பிச்சேன் அப்படின்ட்டு அதே 11வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. இது தபசால யாகத்தால எல்லாம் பார்த்துட முடியாது, பக்தினால தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணாத்துல சொல்றாரு. 11வது அத்தியாயத்துல வருது பகவத்கீதையில. அருமையா இருக்கும். அது அப்படியே படிக்கும் போதே பகவான் பெரிய ரூபம் எடுக்கிறவன், ஆயிரக்கணக்கான தலைகள், ஆயிரக்கணக்கான கைகள், அப்படி பகவான் 100 பார் என்ன, 1000 பார் என்ன அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க இல்லையா. அதுல 11வது அத்தியாயத்துல அது 1000 பார்ப்பேன் நான். அர்ஜுனுக்கு சொன்னார் பகவான், 100 என்ன பாரு, 1000 பாரு. நான் அப்படியே கிருஷ்ணனை 100 1000 பார்ப்பேன். அப்படியே விஸ்வரூபம் எடுத்த மாதிரி பார்த்து அனுபவிப்பாது. அது அனுபவமா இருக்கும். அந்த 11வது அத்தியாயம் அந்த பகவத்கீதையில விஸ்வரூப தர்சனம் அதை படிச்சு அப்படியே கட்டில் மேலதான் அங்க உட்காந்துக்கு. எனக்கு தெரியாது அப்பெல்லாம் ரொம்ப. அப்ப கல்யாணம்லாம் அவளை சின்ன பையன், அப்போ 25 வயசு பையன்.
அப்போ என்ன நான் பார்த்துலாம் படிச்சுட்டு அப்படியே கட்டில் மேலே பத்துன்னு இருக்கும்போது கூட அந்த விஸ்வரூபம் பகவான் கிருஷ்ணன் அப்படியே பெரிய ரூபம் எடுக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு அப்படியே தோற்றம் ஏற்படும். அந்த அந்த ஃபிளாஷ் அடிக்கடி ஏற்படும். யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி. அப்போதான் மகாபாரதம் வந்துருக்கு இல்லையா, பகவான் விஸ்வரூபம் எடுத்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து காமிப்பாங்க. அப்போ அதை பார்த்தோன்னே யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர், அந்த அந்த டியூனு அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். கிளானிர்பவதி அது அடிக்கடி திருப்பி பாடுவேன். அந்த ஸ்லோகம் அப்படியே ஆவர்த்தி பண்ணி இருப்பேன். அந்த கிருஷ்ண விஸ்வரூபம் எடுக்கிறதே ஞாபகம் இருக்கும், மனசுல அப்படியே பதிஞ்சு போயிடும். யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுஜாம்யகம். இப்போ என்னை யார் என்று பார் அப்படின்னு கர்ணன் படத்துல காமிப்பார் இல்லையா, சங்கு சக்கர கதாதாரியா விஷ்ணு என்.டி. ராமாரா காமிப்பார் இல்லையா, அது அது ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த ஞாபகம் இந்த ஞாபகம் எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து பகவானுடைய விஸ்வரூபம் பெரிய ரூபம் எடுக்கிறது ஞாபகம். அப்போ யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுஜாம்யகம் பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம இப்ப அதான் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகி. அந்த பகவானுடைய அந்த ஸ்லோகங்கள், அந்த மியூசிக், அந்த மகாபாரதத்துல போடும்போது அந்த மியூசிக், அந்த ஸ்லோகங்கள், அந்த பகவான் விஸ்வரூபம் எடுக்கிறது அப்படியே மனசுல அப்படியே தியானமா இருக்கும். கட்டில் படுத்து தூங்கி நிரும்போது இல்லைன்னா பகவான் அப்படியே பெரிய ரூபம் விஸ்வரூபம் எடுக்கிற அந்த காட்சி, அதெல்லாம் அப்படியே மனசுல அப்படியே ரமிச்சுன்னு இருப்பேன். அப்படியே தூங்கிட்டேன். அப்புறமா கிடைக்கல. அப்புறமா ராமாயண புஸ்தகம் கட்சி லிஃப்ட், அது ராமாயணம் தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அதுக்கு அப்புறமா தான் ராமூர்த்தி மாமா ஒருத்தர், அவர் கோயிலில் பார்த்தேன், விநாயகர் கோயிலில் பார்த்தோன்னே அவர் என்ன பண்ணாரு, பிரதட்சணம் பண்ணிருக்காரு. நான் ஏன் கோயிலில் சுத்துறேன் தெரியுமா, அவரு காமெடிக்காக சொன்னது. நான் ஏன் கோயிலில் சுத்துறேன் தெரியுமா, அதாவது சாமி இல்லைன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும், ஒருவேளை இருந்துச்சுன்னா அவர் சொல்லுவாரு, அவர் விளையாட்டா சொல்லுவாரு ராமூர்த்தி மாமான்னு. அவர் தான் சொல்றாரு, நான் ஏன் கோயில் சுத்துறேன் தெரியுமா, புள்ளியார் எது தெரியுமா சுத்துறேன், புள்ளியார் முருகர் இருக்கும், 2 கோயில சுத்துவார் அவர். அங்க சங்கர அங்க குரு விநாயகர் கோயில்னு ஒரு இடம். அவர் சொல்லுவாரு ராமூர்த்தி மாமா, கோயில் ஏன் நான் சுத்துறேன்னா சாமி இல்லைன்னு நல்லா தெரியும் எனக்கு, ஒருவேளை இருந்துச்சுன்னா அப்ப கும்பிடலன்னு ஒரு தப்பாயிடும் இல்லையா, அதனாலதான் சாமி கும்பிடுறேன் நாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுவாரு அவர் விளையாட்டா. அப்புறம் சொல்லுவாரு, எனக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண லீலைகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ஆசைமாமா அப்படின்ட்டு. ராமூர்த்தி மாமா, அதான் பாகவதம் இருக்கே, பாகவதம் அப்படின்னா நேது கேட்குறேன் அவர்களை. மகாபாரதம் தெரியும், ராமாயணம் தெரியும், பாகவதம்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு அவர்கள் தான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அட பாகவதம் நடக்குதுவா, கரெக்டா அந்த டைம்ல பார்த்தா அண்ணா நகர்ல 18 மெட்ரோல பாகவதம் ஆரம்பிக்க போறாங்க. என்ன அவசியம் போறாரு, அவர் என்ன பண்றாரு, பொட்டி வச்ச சைக்கிள் ஒன்று இருக்கும், அவரு சைக்கிள் வர, நான் ஒரு சைக்கிள்ல போறேன். 2 பேரும் அண்ணா நகர்ல, இங்கிருந்து கிட்டதான் எங்களுக்கு அண்ணா நகர் எங்களுக்கு கிட்டதான், கொடியூர்ல இருந்து அண்ணா நகர் கிட்டதான். அது ஷார்ட்கட் ரூட்ல ஐநாவர் ரூட்ல போனா கிட்ட, நாங்க அந்த ஐநாவர் ரூட்ல போயிடும், ஐஓசி இதுல ஐசிஎஃப் இது ஐநாவர் ரூட்ல ஐசிஎஃப் ரூட்ல போயிடும். அப்படி போயிட்டோம்னா நாங்க கிட்ட போயிடலாம் அண்ணா நகர் 18 மெட்ரோ. போனா எவ்வளவு ஜனம், அப்பா பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி அப்படியே அவர் வந்தார் உடனே அந்த இடமே பிரகாசமா இருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமா, உடனே வைகுண்டத்துக்கு வந்த மாதிரி இருந்தது. அங்க போய் பாகவதம் வர்ஷிக்கிறாரு பாருங்க, அமிர்தம். அப்பதான் ததாபிநாதமானஸ்ய நாதநாதாய நாதிதம், அவர் சொல்ற அந்த அழகு, அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அழகு என்ன சுவாரஸ்யம், ரசம் ரசம். அப்பதான் அவர் பேர்ல பாகவதம் கேட்டோடனே நான் அதுதானே ஆசைப்பட்டு இருந்தேன், கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளுக்கு. இந்த காளி என்னத்தனம் பண்ணானா, கோவத்தனம், இதெல்லாம் விஸ்தாரமா தெரியும்னு ஆசைப்பட்டேன். அவன் பண்ண லீலைகள்லாம் நான் பார்த்தா 90 அத்தியாயம். எவ்வாடி நான் எந்த கிருஷ்ண லீலைகளுக்கு ஆசைப்பட்டனோ ஒரே ஒரு லீலையை வச்சுன்னு வாழ்நாள் போது ரமிச்சுன்னு இருந்தேன் ரொம்ப நாளா. 25 வயசுல இருந்து அப்போ எங்க அப்பாவுல இருந்த பகவத்கீதையில 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூப தர்சன யோகம். அந்த விஸ்வரூப தர்சன யோகத்துல மட்டும் நான் அதே தியானமா இருந்தேன், அதுல மட்டும்தான் ரமிச்சிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அவன் லீலைகள் எங்க கிடைக்காது. எனக்கு மகாபாரதம் தெரியுமா, பாகவதம் ஒண்ணு இருக்குதே தெரியாது. அப்புறம் பார்த்தா இங்க கிருஷ்ண லீலைகள்னா 90 அத்தியாயமா, எவ்வாடி அப்படின்னா ஒரு இதுல அது மாதிரி ஆயிப்போச்சு. அப்பா இவ்வளவு லீலைகள் இருக்கா கிருஷ்ணனுடைய, அதுவும் விஸ்தாரமா இருக்கு, அதுவும் ஸ்துதிகளோட இருக்கு. இப்போ அதுவும் ஸ்துதிகளோட இருக்கு, நாகபத்திரிகள் ஸ்துதி, இந்திரனுடைய ஸ்துதி, பிரம்ம மோகன நீல, அப்பா 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 அப்பா, பகவான் 16,000 ரூபங்களை எடுத்து 16 ஸ்திரீகளை கல்யாணம் பண்ணி இருந்து
பகவானே கன்றுகளாகவும் பசங்களா மாறணும்னு அப்படியே ஆச்சரியமாயிடுச்சு. இப்படிப்பட்ட லீலைகள்லாம் இருக்காருன்னா எல்லாம் பாகவத்துல இருக்கியா? சும்மா இல்லை இல்லை இருக்கியா? போய் படிச்சு பாரியா. எங்க இருக்குண்ணா? பாகவதத்துல இருக்கு. பாகவதம் ஒரு புஸ்தகம் எங்க? பாகவதம் ஒரு புஸ்தகம் இருக்குன்னு அப்பதான் தெரியுது. பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி வாக்குல கேட்கும்பொழுது அந்த பாகவதம். அப்ப ராமதேவன் கேட்டேன், மாமா நீங்க தெய்வமாமா? இதுக்குதான் மாமா ஆசைப்பட்டேன். அந்த கிருஷ்ணலீலைகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ரொம்ப ஏங்கின்னு இருந்தேன். நான் சின்ன வயசுல கதையா கேட்டேன். அதெல்லாம் புஸ்தகமா கிடைக்குமான்னா பாகவதத்துல இருக்கு. பாகவதத்துல போனா 90 அத்தியாயம் விட்டுருவனா உடனே அந்த புஸ்தகம் அர்த்த புஸ்தகம் வாங்கினு வந்துச்சுன்னு ஃபுல்லா படிச்சேன். படிச்சு என்ன பண்ணுவேன், அப்போ பைசா எனக்கு கொஞ்சம் பைசா தட்டுப்பாடு. உடனே ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு போவேன். ராமகிருஷ்ண மடத்துல பக்கத்துல லைப்ரரி இருக்கும். அந்த லைப்ரரியில போய் நம்மனா புஸ்தகம் வாங்கினு வச்சு படிப்பேன். அங்கே மெம்பர்ஷிப் ஆகிட்டு அந்த ராமகிருஷ்ண மடத்துல மெம்பர்ஷிப் ஆகிட்டு அப்போ கபாலீஸ்வர் கோயில்லையும் ஒரு லைப்ரரி இருக்கு. அங்கேயும் போய் படிப்பேன், இங்கேயும் படிப்பேன். பாகவத புஸ்தகம் அங்கே இருக்கும். அங்கே போய் பாகவத புஸ்தகத்தில் லைப்ரரி மெம்பர்ஷிப் ஆகிட்டு அந்த புஸ்தகம் வாடகத்துல இருந்து படிப்பேன். அந்த பாகவதம் அது ஃபுல்லாக வரும், கதையாக இருக்கும். அதை படித்து அனுபவிப்பேன். ரொம்ப ஹரிவம்சம் அதில் என்னன்னா இந்த ருக்மணி பாரிஜாத மரத்துக்காக ருக்மணியும் பாமாவும் வச்சுக்கிறாங்களே அந்த கதை, அதெல்லாம் படிப்பேன். ஹரிவம்சம் அதெல்லாம் வாங்கி வந்து படிப்பேன். இதெல்லாம் படித்து அப்படியே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி போச்சு. அப்புறம் புஸ்தகம் வாங்குறதுக்கு பைசா கிடையாது. அப்போ என்னன்னா இது போல ராமகிருஷ்ண மடத்துல போய் அந்த புஸ்தகம் லைப்ரரியில புஸ்தகம் வாங்கிட்டு வாடகை வாங்கிட்டு படிச்சு அதிலே எதுவும் கொடுத்துருவேன். ஒரு வாரம் டைம், அது இது டைம் இத்தனை டேட் வரையும். அதுக்கு நம்ம ஒரு வாடகை கொடுக்கணும். அதை கொடுத்துட்டு அப்புறம் புஸ்தகம் வாங்கிட்டு படிப்பேன். படிச்சு அனுபவிப்பேன். அப்போ அந்த கிருஷ்ண லீலைகள்லாம் ஸ்மரணம் பண்ணி அதே தியானம் பண்ணி அனுபவிச்சோடனே அப்புறம் திருப்பி எதுவும் கொடுத்துருவோம் புஸ்தகம். அப்புறம் புஸ்தகம் நான் வாங்கிக்க முடியுமான்னு வேலைகள்லாம் கிடையாது. ஏதோ படிக்கிறியா படிச்சுட்டு கொடுத்துரு, அதுதான் சரி படிச்சுட்டு கொடுத்துருவேன் அந்த புஸ்தகத்தை. அது அப்புறம் பார்த்தா கடலுங்குடி புஸ்தகம் ஒன்று இருந்தது அந்த லைப்ரரியிலே. கடலுங்குடி போட்டிருக்காரு. இது என்ன, இது ஸ்லோகம் அர்த்தம். நம்மளுக்கு ஸ்லோகம்லாம் வேணாம், நம்மளுக்கு கதை தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண அந்த கதையை கடலுங்குடி புஸ்தகம் பார்த்தா ஒன்று ரெண்டு இருக்கும். அதெல்லாம் படிச்சு பார்ப்பேன். பரவாயில்ல, இது ஸ்லோகமாக அர்த்தம் போட்டிருக்காங்க, நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா அந்த கடலுங்குடி புஸ்தகம் இது எங்கே கிடைக்குன்னு பார்த்து அந்த அட்ரஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அட்ரஸ் கீழே ஃபோன் நம்பர், லேண்ட்லைன் நம்பர் இருக்கும். அதை ஃபோன் பண்ணி கேட்டு விசாரிச்சு அந்த அட்ரஸுக்கு போய் அது அப்போவே 900 ரூபான்னாங்க. 1000 ரூபாய் அப்போவே. 7 புஸ்தகமோ 8 புஸ்தகமோ. சரி நான் வாங்கிக்கிறேங்க. உடனே போய் என்ன பண்ண காசு எல்லாம் எப்படியே தட்டி அப்புறம் நாங்கள் ஒரு கன்னடி ஸ்கொயரில் அப்போது வள்ளலார் ஆசிரமத்தில் போய் தியானம் பண்ணேன். மெடிடேஷன் கிளாஸுக்கு போயின்னு இருக்கேன். அங்கே போய் என்னென்னா இது போல் ஆசிரமத்துக்காக வேணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த 1000 ரூபாய் புஸ்தகம் ஏதோ 900 ரூபாய்க்கு கம்மி பண்ணி கொடுத்தாங்க. 900 ரூபாய் தான் புஸ்தகம். சரி 900 ரூபாய் 950 ரூபா அது 50 ரூபா கம்மி பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவள் தான் நான் கடலுங்குடி அது 900 ரூபாய் புஸ்தகம் வாங்கிட்டேன். காசு கொடுத்து எப்படியோ கடவுளை வாங்கியாச்சு. அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி வீட்டில் வச்சு படித்து பார்க்குறேன். ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வார்த்தைகள்லாம். கடலுங்குடி பாகவதம் பார்த்தா சம்ஸ்கிருத வார்த்தை அப்படியே போட்டிருப்பார், எளிமையாக இருக்காது தமிழில். ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சரி அந்த கதைகள் முக்கியமாச்சுன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண கதைகள் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டேன். அந்த பாகவதம் பூரா, அதுவும் 10ஆம் ஸ்கந்தம் மட்டும் திருப்பி படிச்சுக்கிறேன். 10ஆம் ஸ்கந்தம் 2 பாகமாக போட்டாங்க. 10ஆம் ஸ்கந்தம் மட்டும் அது மட்டும் அந்த கதைகள் மட்டும் ஃபுல்லாக படிப்பேன். ரொம்ப ஆசை படிக்க. அப்போ எங்களுக்கு அரிசி கடை இருக்குது, ஒரு கடை இருக்குது அரிசி கடை. அந்த அரிசி கடையில் உட்காந்துன்னு ஃபேனை போட்டு விட்டு அழகாக ஃபுல்லாக பாகவதம் படிப்பேன். அரிசி வியாபாரம் பண்ணுவோம் நான். அதே சமயத்தில் இந்த பாகவத புஸ்தகமும் படிச்சுன்னே இருப்பேன். படித்து பாகவதம் பூரா அந்த 10ஆம் ஸ்கந்தம் மட்டுமே திருப்பி 90 படித்து பார்ப்பேன். ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அந்த கதைகள் மட்டும். சம்ஸ்கிருதம் நாளையெல்லாம் அப்போ கிடையாது. அதுக்கு அப்புறமா தான் படிப்படியாக பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி வாக்கில் பாகவதம் கேட்டேன் இல்லையா, அவர் போட்ட வேலை தானே. அப்புறமா கதைகளை படித்தோம் இல்லையா, அப்புறம் படிப்படியாக நான் அவர்களை போய் பாகவதம் கேட்டு ஸ்லோகம் அப்புறம் ஸ்லோகமாக படிக்கணும்னு ஆசை வந்தது. அப்படியே படிப்படியாக மகாத்மாக்களை போய் சேர்ற வரைக்கும் தான் நீ அக்ஞானி. அந்த மகாத்மாவுடைய கடாட்சம் பட்டுச்சுன்னா நீ ஞானி. உனக்கு எல்லா ஞானமும் உண்டாயிடும். இனிமேல் நான் கதை வந்துச்சு 90 அத்தியாயம், இப்பெல்லாம் 90 அத்தியாயம் கதை அருமையா இருக்குது. அன்னைக்கு அருமையா இருந்தது, இன்னைக்கு அருமையா இருக்குதா படிக்கிறதுக்கு? நம்மளுக்கு புஸ்தகம் வருது, அர்த்த புஸ்தகம் வருது. பாகவதம் படிக்கணும்னா கிருஷ்ண லீலைகள் அதை அனுபவிச்சு படிக்க முடியுதா? அது இன்ட்ரெஸ்ட் வருதா? ஆனா அது ஏங்கின்னு இருக்கும்போது, அது பசியோடு இருக்கும்பொழுது அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. இப்ப இருக்குது வீட்டுல தூங்கின்னு இருக்குது, புஸ்தகம் படிக்கணும்னு ஆசை வருதா? வரமாட்டேது. 90 அத்தியாயம் கிருஷ்ண லீலைகள் நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னா அதை படிக்கணும்னு ஆசை வரணும் இல்லையா? அப்படியே பொங்கின்னு வரணும் இல்லையா? வரமாட்டேங்குது. அதுதான் அது கிடைக்காத வரைக்கும் ஏங்குறது.
கிடைச்ச பிறகு அது அலட்சியம். எல்லாமே அப்படிதான். எல்லாம் கிடைக்கிற வரைக்கும் தான் அப்படியே ஏக்கம் பயங்கரமா ஆஹா ஓஹோன்னு. கிடைச்ச பிறகு வாய் மண்ணு கொஞ்சம் கம்னரு. அந்த பெண்ணு பேசுறதுக்கு ஏங்கிருப்பான். அதுக்கப்புறமா என்னன்னா அலட்சியப்படுத்துருவான். ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி சொல்றேன். அப்புறம் அதே மாதிரிதான் புஸ்தகம் நம்மளுக்கு வராத வரைக்கும் ஐயோ அந்த கதைலாம் கிடைக்குமா, லைப்ரரியில போய் வாடகைலாம் வாங்கி வந்து படிச்சேன். இப்ப கிடைச்சிட்டு பிறகு தூங்குது புஸ்தகம். அது மாதிரி ஆயிடும். அப்புறமா தான் அந்த பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி, அதான் மகாத்மாக்களுடைய கடாட்சத்துக்கு பாதத்மா எப்பொழுதும் மகாத்மாக்களுடைய கடாட்சத்திலேயே இருக்கணும். அவங்க சத் சங்கத்திலேயே இருந்தாங்கன்னா நமக்கு பாகவதம் படிக்க வரும். அந்த பாகவத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அதுல வாசுதேவ கதா ருச்சி சியான் மகத் சேவையா, மகானுடைய சேவையினால்தான் வாசுதேவ கதைகள் ருச்சி ஏற்படும். அப்புறமா ஸ்லோகமா படிக்க வச்சது அவர் தான். அவருடைய அவர் தானே அவர் உட்காந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல, பகவான் தான் சொல்லி கொடுத்தான். அவருடைய உபன்யாசங்களை கேட்டு அவருடைய ஸ்லோகங்களை வர்ஷிக்கிறத பார்த்து அவர் மூல பாராயணத்தெல்லாம் கூட உட்காந்து ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பாகவத ஸ்லோகத்துல எனக்கு ஆசை வந்தது. அப்போ பாகவத ஸ்லோக புஸ்தகம் வச்சிருந்தாலே வீட்டுல நல்லது அப்படின்னு பிரசாதம் ஒரு மாமா வந்து சொன்னார். அப்பா திருப்பி அந்த பாகவத புஸ்தகம் வாங்கினேன். சரி வாங்கலை, எனக்கு ஃப்ரீயாக கிடைச்சது. பாகவத புஸ்தகம் தமிழ்ல மூலபாராயண புஸ்தகம் வாங்கின ராமா கொண்டு அப்புறமா தான் ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. போய் சொல்லி தான் வாங்கிட்டேன். அப்புறம் அது உண்மையாயிடுச்சு, படிக்க வச்சுட்டார் பகவான். அப்படியே வளர்ந்தது பக்தி. அவ்வளமா நான் உபன்யாசம் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அடியேன்னு எல்லாம் பாராயணம் பண்ண ஆரம்பித்தேன். பல வீட்டில் கூட போய் பாராயணம் பண்ணியிருக்கேன், உபன்யாசம் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வீட்டில் தான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் யாருக்கு அடிக்கலன்னா நம்ம பாடிக்கலாம், அது நான் படிப்பேன். அது அப்படி பக்தி வளர்ந்தது. இந்த பாகவதத்தை அப்படி கட்சிது எனக்கு, அப்படி ஏங்க வச்சு கட்சிது பாகவதம். அப்போ இன்னைக்கு பாகவதம், கடலங்குடி பாகவதம் இருக்கு, கீதா பஸ் பாகவதம் இருக்கு, இஸ்கான் பாகவதம் இருக்கு, எல்லாம் எனக்கு வேணும். ஆனா படிக்கிறதுனா இல்லையோ, அதை வாங்கி வச்சிருந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி வச்சு தலைகாணி மாதிரி பெரிய பெரிய புஸ்தகம்லாம் வச்சுக்கிறேன். வச்சு படிப்பேன் கொஞ்ச நேரம். ஆசை இருக்கும்போது தான் அது படிக்காம இல்லை, படிச்சுன்னு தான் இருப்போம். ஆனா ஒரு சந்தர்ப்பம் மூடு இருக்காது. அதுக்காக எப்பொழுதும் அதை படிச்சுன்னு இருக்க முடியுமா? மற்ற அலுவல்களும் பார்க்கணும், மற்ற வேலைகள்லாம் பார்த்துட்டு பாராயணம் பண்ணணும். அது மாதிரி அவ்வளோ ஆசை. எல்லாம் கிடைக்காது, இந்த புஸ்தகம்லாம் கிடைக்காது, இந்த புஸ்தகம்லாம் கிடைக்காதுன்னு சொல்லியே நான் என்ன படம் சொல்லி என்னை உஸ்பேத்தி விட்டாங்க. அப்படினால உடனே வாங்கி போட்டணும்னு சொல்லிட்டு அந்த புஸ்தகம்லாம் வாங்கி போட்டேன். எல்லாம் கிடைக்காத புஸ்தகம். அப்போ பாகவதம் வந்த பிறகுதான் எனக்கு பெரிய ஒரு பசி தாகம் அடங்கின மாதிரி இருந்துச்சு. அது போல ஏங்கணும் பாகவதத்துக்காக. அப்போதான் பக்தி ருச்சி ஏற்படும். சரி டைம் ஆயிடுச்சு, நம்ம மூலப்பாராயணம் பண்ணுவோம். ஏதோ அப்படி அனுபவத்துக்கு கொஞ்சம் உங்களோட ஷேர் பண்ண ஆசைப்பட்டேன், ஷேர் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான். அப்படி பாகவதத்துல வந்தாதான் ஸ்திரமா இருக்க முடியும். பாகவதத்துல பகவான் நாம சங்கீதத்துல எல்லாமே ஷரி நமஹ ஷரி நமஹ ஷரி நமஹ கோபிகா ஜீவனஸ்மரன் கோவிந்தா கோவிந்தா. அப்புறம் ராமகிருஷ்ண மடத்துல பாகவத சாரம் 6000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கான். அதுவும் அண்ணான்னு ஒருத்தர், அவர் வேற அண்ணா, அவர் அண்ணா ஸ்ரீ அண்ணா வேற, கிருஷ்ணபிரேமி அண்ணா வேற, இவர் வேற ஒரு அண்ணா. அவர் எழுதின புஸ்தகம் தான் ராமகிருஷ்ண மடத்துல 6000 ஸ்லோகங்கள் பாகவதம். அதையும் வாங்கி வச்சிருக்கேன், அதையும் படிப்பேன். ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் படிப்பேன். அப்புறமா தான் என்ன சொல்லுவாங்க, பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி வாக்குல பாகவதம் கேட்டு வேற எங்கேயும் போய் கேட்காத அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க எனக்கு. அவர் வாக்குல கேட்கும் போது அந்த ஸ்லோகமா அனுபவிக்கிற பாக்கியம் கிடைக்கும், ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அப்படிதான் பாகவத பித்து பிடிச்சது எனக்கு. அவர் போட்ட வேதை தான், பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி போட்ட வேதை தான் இந்த பாகவதம் ஸ்லோகமா படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அப்புறமா ஸ்லோகம் அதான் சொன்னேன், எப்படி படிக்க வந்தது, 5 நாள்ல படிக்க வந்துடுச்சு பாகவதம் ஸ்லோகம். அப்போ இப்போ ஸ்லோகங்களை படிக்கிறேன், கதையும் நல்லா புரியுது. படிக்க வைக்கிறது மட்டும் இல்லை, அந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் புரிய வச்சாம்பார், அதான் ஆச்சரியம். அப்படிதான் உபன்யாசம் பண்ண முடிஞ்சது. ஏன்னா அர்த்த புஸ்தகங்கள்லாம் நான் ரொம்ப போய் பார்க்க மாட்டேன். ஸ்லோகத்தோடு இருக்கணும், அதுவும் பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி சொன்ன அர்த்தம் தான் வேணும். அந்த அவரு சொல்ற அந்த அர்த்தம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க புஸ்தகங்கள்ல, அந்த விளக்கத்தை விட எனக்கு குருநாதருடைய வார்த்தை தான் வேணும். குரு வாக்கியேஷு, அந்த விஸ்வாச குரு வாக்கியேஷு, பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி சொல்ற பாகவதம் தான் வேணும். அந்த பாகவதத்துல அவர் சொல்ற அர்த்தம் தான் வேணும், அதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படிதான் நாங்கள் நோட்ஸ் எடுப்போம் இந்த பாகவத மூலப்பாராயண புஸ்தகத்துல. அந்த அர்த்தம் தான் நான் ரொம்ப படிப்பேன். அதுதான் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும், தித்திப்பா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு பாகவதத்துல. சரி ஓகே, நம்ம ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன், கோச்சிக்காதீங்க. ஏதோ இதெல்லாம் பாகவத அனுபவங்கள், இதெல்லாம் அனுபவிச்ச ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிது, அதை பத்தி உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டேன். சரி ஓகே, இப்போ நம்ம 4வது ஸ்கந்தம் 13வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ஸ்ரீ ஹரே நமஹ ஸ்ரீ ஹரே நமஹ ஸ்ரீ ஹரே நமஹ கோபிகா ஜீவனஸ்மரன் கோவிந்தா கோவிந்தா. ஜெய் ஜானகிகாந்த ஸ்மரணம், ஜெய் ஜெய் ராம ராமா.
சகல சாதுமல்லிக்கு ஜெய். எப்படி ஸ்லோகங்கள் வசிக்கிறாங்க, எப்படி கதை சொல்றாங்க, ஆச்சரியமா இருக்கும். அதெல்லாம் புஸ்தகம் வாங்கி படிக்கும்போது தான் அவ்வளோ சுவாரஸ்யமா இருக்கு. அவங்க அனுபவத்தோட சொல்லும்போது அது கேட்க கேட்க ஆனந்தமா இருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு பாக்கியம்ங்க, சத்பாக்கியம். இந்த தான் பாக்கியோதயேன்னு பகுஜென்ம சமர்ச்சிதேன சத் சங்கமம் லபதே. பல ஜென்மங்களாக பகவானுக்கு புஷ்பங்களா அர்ச்சனை பண்ணியிருந்தாதான் பகுஜென்ம சம அர்ச்சிதேன்னு ஒருமுகப்பட்ட மனதோட அர்ச்சனை பண்ணியிருந்தாதான் சத் சங்கமும் லபதி, சத் சங்கம் கிடைக்கும். இது மாதிரி மகான்களுடைய சங்கம் கிடைச்சி பாகவதம் கேட்க முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதே சதுர்தஸ்கந்தே அத त्रयोदशाध्यायः सुदुवाच निशम्य कौशारक विनोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठ पदाधिरोहणं प्ररुढ भावः भगवत्यदोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुर प्रचक्रमे विदुर्वाच विदुर्वाच केदे प्रचेदसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत कन्या कस्य अनुभवाये प्रख्यातः कुत्र वा सत्रमासद मन्ये महाभागपदं नारदं देवदर्शनं येन प्राप्तः क्रियायोगः परिचर्याविधिर्हरेः स्वधर्मशैलिः पुरुषर्भगवान् यज्ञपुरुषः युज्यमानं भक्तिमदा नारदे नेरित किल यास्ता देवऋषिण तत्र वर्णिता भगवत्कथाः मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मण कास्येन आचष्टुमर्हसि। मैत्रेयवाच ध्रुवस्य च उद्गलः पुत्र पितरि प्रस्थिते वनं सार्वभौम श्रियं नैचेत् अधिराजासनं पितुः स जन्मनो उपशान्तात्मा नेत्संग समदर्शनः तदर्श लोके विततम् आत्मानं लोकमात्मनि आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं प्रत्यस्तमिद विग्रहम् अवबोध रसैकात्म्यम् आनन्तम् अनुसन्ततम् अव्यवच्छिन्न योगाग्नि दग्धकर्म मलाशयः स्वरूपम् अवरुन्तानः नात्मान अन्यम तदैक्षद जनान्त पदिर उन्मत्त मुखाकृति अतन्मदिः लक्षदपदि बालानां प्रशान्तार्चिरिबाणलः मत्पदं जडमुन्मत्तम कुलवृत्तः समन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रुः यवीयांसं भ्रमे सुतं सर्वीदिर्वत्सरस्यायेष्ट भार्यासूदर षडात्मजान् पुष्पार्णं दिक्मकेदं च यशमोर्जं वसुं जयम् पुष्पार्णस्य प्रभावाद्या देवशा च द्वे बभूवधुः प्रादर्मत्यं दिनं सायं विदिख्यासन् प्रभासुदाः प्रदोषो निषीदो व्युष्ट इति दोषासुदास्त्रयः व्युष्टसुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसम् आदते स चक्षुसुतमाहुत्यां पत्यं मनुम् अवापः मनुरसूदमहिषि व्रजन्नत्फला सुदान् पुरुं कुत्सम त्रिदं त्युम्नं सत्यपन्तं मृदं प्रतम् अक्षिष्टमम् अधिरात्रं सत्यं शिविमुल्मुखम् उल्मुख अजनयत् पुत्रान् पुष्करिण्यां षडुत्तमान् अंगं समरसं ख्यादिं कृतमङ्गिरसं गयम् सुनिदाङ्गस्य ज्ञापत्नी सुशिवे वेणमुल्पणम् यद्दोषिल्यात्स राजर्षि निर्भिन्नो निरखात् पुरात् यमङ्गसे बहु कुपिता वाक्वज्र मणियक्कल कदा स्वस्तस्य भूयस्ते ममन्तु दक्षिणं करम् अराजके तदा लोके तस्युभिः पीडिता प्रजाः। जादो नारायणांशेन पुत्रात्यः ऋषिदेश्वरः विदुर्वाच तस्य शीलनिधे साधुर् ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञा कथम् अभूत्पृष्टा प्रजायते मनाययो किं वाम्हो वेन उद्देश्य ब्रह्मदण्डम् अयुयुजन् दण्डव्रतधरे राज्ञी मुनियो धर्मकोविदाः न अवत्यय प्रजाबालः प्रजाभिरघवाणवि यदसो लोकपालानां विवर्त्योजः स्वतेजसा एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् सुनिध आत्मज चेष्टितं सत्यदानाय भक्ताय त्वं परावर वित्तमः। मैत्रेयवाच अंगे अश्वमेधं राजर्षिर् आजहार महाकृतं नाजग्मुर् देवदास्तस्मिन् आहूता ब्रह्मवादिभिः तमोचे विस्मितस्तत्र यजमानम् अदत्वजः हविंषि होयमानानि नदे गृह्णन्ति देवतः राजन् हविष्य दुष्टानि श्रद्धया आसादितानि ते चन्तांसि यादयामानि योजितानि द्रुतव्रतैः न विदामेह देवानां हेलनं वयमन्वपि
यन्न गृह्णन्ति भागान् यन्न गृह्णन्ति भागान् स्पान्ये देवः कर्म साक्षिणः यद्रवाच अंगत्वच वचस्वत्वः यजमान सुधर्मणाः तत्प्रष्टुं रचितत्वाचम् सदस्यांस्तत्तनुज्ञया न गच्छन्त्याहुदा देवा न गृह्णन्ति गृहाणिः सदसस्पतियो ब्रूद किमावत्यं मया कृतं सदसस्पतियोचुः नरदेवेऽहमवदो नाहं दावन् मनाक् स्थितम् अस्त्येकं प्राक्तनमहं यदि हेतृक् त्वमग्रप्रजः अदा साधय पत्रन्ते आत्मानं सुप्रजं जपः इष्टस्य पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञवक् तदा स्वबाहुदेयानि प्रहिष्यन्ति दिवौकसः यत्यज्ञपुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिव्रतः तां स्तां कामन् हरिदत्यात्यान् यान् कामयदे जनः आराधितो तथैवैष यदा पुंसं बलोदयः यदि व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजादये पुरोडासं निर्वपन्नस्य विभिष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यम् अलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसं स विप्राणुमदो राजा गृहीत्वा अञ्जलिनौदनम् अवक्राय मुदायुक्तः प्रातत्पत्न्या उदारधिः सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्रास्य वै पत्युराददे गर्भं काल उभावृत्ते कुमारं सुषुवे अप्रजा स काल एव पुरुषो मादामहमनुव्रतः आदर्मांसोद्भवं वृत्तिं देनाभवत् अधार्मिकः स सरासनमुद्यम्यः मृगयोर्वणगोचरः हन्त्यासाधुर्मृगान् दीनान् वेनो असुविद्यरौजनः आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्कान् अधिदारुणः प्रसख्य निरणक्रोशः पशुमारम् अमारयत् प्रसख्य निरणक्रोशः पशुमारम् अमारयत् तं विचक्ष्य कलं वक्त्रं शासने विविधे नृपः यदा न शासितं कल्पो रसमासीत् सुधर्मणाः भृशम् आसीत् सुधर्मणाः प्रायणार्प्यच्युतो देवो ये अप्रजा गृहमेदिनः कदपत्यभृतं दुःखं येन विन्दन्ति दुर्भरं यदा पापीयसी कीर्तिः अधर्मश्च महान् नृणां यदो विरोध सर्वेषां यदा आदिरनन्तकः हस्तं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनम् आत्मनः पण्डितो बहुमन्येत यदत्ताः क्लेशदा गृहाः हदपत्यं वरं मन्ये सदपत्या शुचं पतात् निर्वेत्येद गृहान् मत्यो यत्क्लेशनिपः गृहाः एवं स निर्भिन्न मना नृपो गृहान् निषीद उत्ताय महोदयोदयात् अडप्तनेत्रो अनुपलक्षितो नृभिः हित्वा गदोवेन शुभं प्रसुप्तां व्यक्त्यानि निर्वित्य गदं पदिं प्रजः पुरोहिता अमात्यं सुहृद्गणादयः यशिकृव्याम् अधिशोककातरा यदा निगुणं पुरुषं कुयोगिनः अलक्षयन्त पदवीं प्रजापतेः अदोत्यमाः प्रत्युपसृत्य देहपुरीं ऋषिं समेतान् अभिवन्त्य शास्त्रवो निवेदयन् भर्तृविप्लवं श्रीमद्बाहुली महापुराणे पारमहंस्य संहितायां चतुस्कन्धे त्रयोदशाध्यायः श्री नमः शरण नमः शरण नमः गोपिका अर्जुनस्मरण गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्तस्मरण जय जय राम राम। अथ चतुर्दशोऽध्यायः साधुमण्डली की जय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः मैत्रेयवाच दृक्पादयस्ते मुनियो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यसदिपै नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यतां वीरमादरम् आहूय सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्य सम्मदं वेणम् अप्यसिञ्चन् पदिम्भवः श्रुत्वा नृपासनगतं वेणम् अत्युग्रशासनं निलिल्योतस्य वः सत्यः सर्वत्रस्ता इवागपः स आरुढन् नृपस्तान् उन्नत अष्टविभूतिभिः अवमेन महाबाहान् स्तप्तसम्भावितस्पदः एवं मदान्त उत्सुक्तो निरङ्कुश इव द्विपः पर्यटन् रथमास्ताय कम्पयन् निवरोधसि न यष्टव्यं न दातव्यं न होदव्यं त्वचा क्वचित् इति न्यवारयद्धर्मं बेरिघोषेण सर्वसः वेणस्यावेक्ष्य मुनियो दुर्वृत्तस्य यचेष्टितं विमृश्य लोहव्यसनं कृवयोचुः स्म सत्रिणः अहो उभयदक् प्राप्तं लोहस्य व्यसनं महत् दारुण्युभयदोद्दीप्त इव तस्करपालयोः अराजकभयादेश कृतो लो राजात् अदर्हणः तदो अभ्यासिद्भयं तत्य कथं स्यात् स्वस्ति देहिनाम् अहेरिव पयपोषः पोषकस्याप्यनतभृत्
वेन प्रकृत्यैव कलह सुनीता गर्भसंभवः निरूपित प्रजाबलः स जिकांसति वै प्रजाः तदापि शान्तये मामुं नास्तं तत्पादकं स्पृशेत् तद्विद्वद्भिर् असत्वत्तो वेनो अस्माभिः कृतो नृपः शान्तितो यदि नो वाचं न गृहीष्यत् आत्मकृत् लोकधिक्कारसन्तप्तं दहिष्यामः स्वतेजसाम् एवमत्यवसायैनं मुनयो गूढमन्यवः उपप्रज्य अब्रुवन् वेनं सान्त्वयित्वा च सामभिः मुनयोजुः ध्रुववर्य निबोधयदत् यत्ते विज्ञापयाम भोः आयुश्री बलकीर्ति नाम दवताद विवर्तनम् धर्म आचरित पुंसम वामन काय बुद्धिभिः लोकान् विशोगान् विदरत्यतान् अन्त्यम् असङ्गिनाम् सदेन्मा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे द्रुपदिर् ऐश्वर्यात् अवरोहति राजन् राजन्नसात्वमात्येभ्यश्चोरादिभ्यः प्रजा नृपः रक्षन् यदा बलिं गृह्णन्निह प्रत्यच्च मोदते यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपुरुषः यज्ञस्वेन धर्मेण यज्ञवर्णाश्रमान् विदैः तस्य राज्ञ महाभाग भगवान् भूतभावनः परिदृश्यति विश्वात्मा दुष्टदो रजशासने तस्मिंस्तुष्टे किम् अप्राप्यं जगताम् ईश्वरेश्वरे लोकाः सबलाः ह्येतस्मै हरन्ति बलिमातृदाः तं सर्वलोकम् अमरयज्ञसङ्ग्रहं त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञविचित्र यजतो बभायते राजन् स्वदेशान् अनुरोद्धुमर्हसि यज्ञेन युष्मत्विषये प्रजादिभिः विधायमानेन सुराकला हरेः शिष्ट सुदुष्ट प्रदिशन्ति वाञ्छितं तत्हेलनं नार्हसि वीरचेष्टितं वेन उवाच बालिशापद यूयं वा अधर्मे धर्ममाणिनः ये वर्तितं पदिं हित्वा चारं पदिम् उपासते अवजानन्त्यमी मूढान् ध्रुवरूपिणम् ईश्वरं नानुविन्तन्ति ते पत्रमिह लोके परत्र च को यज्ञपुरुषो नाम यत्रो भक्तिरीतृषि पत्रस्नेह विदूराणां यदा झारे कुयोषितां कृष्णर्विरञ्चो गिरीश इन्द्र वायुर्यमो रविः पर्जन्य धनुर्धः सोमः शिथिरक्तिरपाम्बुधिः ये चान्यच्च विबुधाः प्रभवो वरशापयोः देहे भवन्ति नृपतिः सर्वदेवमयो नृपः तस्मान्मां कर्मभिर्विप्रा यजत्वं गतसंवत्सराः बलिं च मह्यं हरद मत्तो अन्यः को अक्रबुक् पुमान् बलिं च मह्यं हरद मत्तो अन्यः को अक्रबुक् पुमान् मैत्रेयवाच इत्थं विपर्ययमदिः पापीयान् उत्पदं गतः अनुनीयं मानस्तत्यांश्यां न चक्रे भ्रष्टमङ्गलः इति ते असत्कृतास्तेन त्यजः पण्डितमानिनां भक्ताय याज्ञायां तस्मै विदर चुक्रुतुः हन्यतां येष पाव प्रकृतितारुणः जीवन जगत् असावासु कुरुदे भस्मसात् द्रवम् नायमर्हत्य असत्वृत्तो नरदेव परासनम् यो अधियज्ञपदिं विष्णुं विनिन्त्यत् अणपत्रवः को वैनं परिचक्षेत वेनं एकं हृदे अशुभम् प्राप्त ईदृशम् ऐश्वर्यं यदनुग्रहभाजनः इत्थं व्यवसितः हन्तुं ऋषयो गूढमन्यवः निजक्तुर्हुं वेनं हदम् अच्युतनिन्दया ऋषिभिः स्वाश्रमपदमगतिः पुत्रकलेवरम् सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति एकदा मुनियस्ते तु सरस्वती सलिलाप्लुताः उत्पक्षेण सत्कथा चक्रुरुपविष्टः सरित्तडेः वीक्षस्यतां ततोत्पादान् आहुर्लोकभयङ्करान् अप्यवत्रम् अनादाय तस्योऽप्यं न भवेद् भुवः एवं वृषन्त ऋषयो बदावतं सर्वतो दिशं पांसु समुत्थितो भूरिश्चोराणाम् अभिलुम्पताम् तत्त्वत्रम् आज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पताम् भर्तर्युपरते तस्मिन् अन्योन्यं च जिघांसताम् चोरप्रायं जनपदम् हीनसत्त्वम् अराजकम् लोकान् आवरयञ्चक्त अभितद्दोषदर्शिनः ब्राह्मण समतृक् शान्तो दीनानां समुपेक्षकः शबदे ब्रह्म तस्याभिः भिन्नपाण्डात्पत्पयो यदा नाङ्गस्य वंशो राजर्षयेष
संस्थातुमर्हति अमोघवीर्यः नृपः वंशे अस्मिन् केशवाश्रयः विनिश्चित्यैवं ऋषयो विपन्नस्य महीपतेः ममन्तरोषुं तरसा तत्रासीत् बाहुगो नरः काककृष्ण आदिह्रस्वाङ्गो ह्रस्वबाहुर्महाहनुः ह्रस्ववान् निम्ननासाक्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूर्तजः तं तु ते अवनदं दीनं किं करोमीति वादिनं निषिधेत्यब्रुवंस्तात् स निषादस्ततो अभवत् तस्य वंश्यास्तु नैषाद गिरिकाननगोचराः येन हरन् जायमानो येन कल्मषम् उल्पनम्। श्री हरि नमः शर्म शर्म गोपिकाजीवनस्मरण गोविंद गोविंद। अध पंचम अध्यायः अध पंचदशोऽध्यायः। मैत्रेयवाच अध तस्य पुनर्विप्रेल अपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यं पत्यमाणाभ्यं मिथुनं समपत्यत तद्दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊच परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्। ऋषयोचुः एष विष्णुभगवतः कला भुवनपालिनी इयं च लक्ष्म्या सम्बुधिः पुरुषस्य अणवायिनी अयं तु प्रथमो राज्यं पुमान् प्रतयिता प्रसः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पुदर्शवः इयं च सति देवी गुणभूषणभूषण अर्चिर्नाम वरारोह पृथुम् एव अवरुन्धति एष साक्षात् हरेरंसो जादो लोकरिरक्षयाम् इयं च तत्परा हि श्री अनुजज्ञे अणवायिनी इयं च तत्परा हि श्री अनुजज्ञे अणवायिनी। मैत्रेयवाच प्रशंसन्ते स्मदं विप्रा गन्धर्व प्रबला जगुः उमुच सुमनो गाताराः सित्ता नृत्यन्ति स्वस्त्रियः संगदूर्यमृतं गात्य नेदतुन्दुभयो दिवि तत्र सर्वे उपाजग्मुः देवऋषि पितॄणां गणाः ब्रह्म जगद्गुरुर्देवैः सह श्रुत्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा निजक्ष्णं गदा पुरतः पादयोररविन्दं चदं वै मेने हरे कलां यस्य अप्रतिहतं चक्रमं स परमेश्वरः तस्याभिषेक आरब्ध ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः आभिषेच निखान्यस्मै आजह्रुः सर्वतो जनाः सरित्समुद्रग्रह्यः नाग गाव खगामृगः चौक्षिरिः सर्वभूतानिः समाजक्रुरुपायनं स्व अभिषिक्त महाराजः सुभासः सात्पलङ्कृतः पत्न्यार्चिषा अलङ्कृतया पत्न्यार्चिषा अलङ्कृतया विरेजे अग्निरिवापराः तस्मै जहार धनदो हैमं वीर मलासनम वर्णः सरणाश्रावम् आदपत्रं शशिप्रभम वायुश्च वाळव्यजनेः धर्मः कीर्तिमयीं सृजम् इन्द्रकिरीटम् उत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमः ब्रह्म भयं वर्म भारतिहारमुत्तमं हरिसुदर्शनं चक्रमं तत्पत्न्यव्याहतं श्रियम् दशचन्द्रम् असिं रुद्रः शतचन्द्रं तथाम्बिका सोम अमृतमयान् अस्पां स्पष्ट रूपाश्रयं रथम् अग्निराजकपं चापं सूर्यो रश्मिमया निषून्ने वो पादगे योगमय्यौ चौः पुष्पावलिम् अन्वहम् नाट्यं सुगीतं वादित्रम् अन्तर्ताणं च केचराः ऋषयश्च शिशसत्यः समुद्र सङ्गमात्मजम् चिन्तव पर्वता दत्यो तद्वेदिर्महात्मनः सूद अद माकुदवन्ति तं स्तोतुम् उपदस्तिरे स्थावकं स्थान् अभिप्रेत्य कृतिर्वैन्यः प्रतापवान् मेघनिह्रादया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्। रुद्रवाच भो सुधे मागध सौम्य वन्दिं लोके अधुना अस्पष्ट गुणस्य मे स्यात् हिमाशय मे स्तव एष योज्यताम मा मयि अभूवन् विदधा गिरोपः तस्मात् परोक्षे अस्मत् उपश्रुताञ्जलं हरिष्यते स्तोत्रम् अभिच्यवाचः सत्योत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितुं न स्तवयन्ति सप्याः महद्गुणान् आत्मनि गर्तमेशः क स्थापकैः स्थापयते असदो अभि दे अस्याभविष्यन्निधि विप्रणप्तो जनावहासं कुमुदिर्न वेद। प्रभो ह्यात्मनः स्तोत्रं जुगुप्सन्त्यपि विश्रुतः श्रीमन्त परमोदरः पौरुषं वा विगर्हितं वयं तु अविदिता लोके सूदात्यापि वरीमपि कर्मभिः कथम् आत्मानं गापयिष्यामि बालवत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते पंचदशाध्यायः। श्री नमः गोपिकाजीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द। अथ षोडशोऽध्यायः। मैत्रेयवाच इति ब्रुवाणं द्रौपदीं गायक मुनिचोदितः दुष्टवस्तुष्टमनसः तद्वाक् अमृतसेवयां
नालमयन्ते महिमानुवर्णने यो देववद्यो अवददार मायया वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पदीनाम् अभि बप्रमुर्दियः अदाप्युदार शवसप्रदोर्हरिः कलावदारस्य कथामृतात्रुतः यदोपदेशमुनिभिः प्रचोदितः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं विदन्महि एष धर्मप्रदं श्रेष्ठः लोकं धर्मे अनुवर्तयन् कोप्त च धर्मसेतूनां शास्त्रतत्त्वपरिपन्थिनां एष वै लोकपालनं बिभर्त्येकस्तनुः काले काले यदा बाहं लोहयोर्वयोर्हिदं वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समसर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवत् विभुः तिदिक्षत्याक्रमं वैन्य उपर्याक्रमदाम् अभि बोधानं कर्ण सस्वत् आर्तानं क्षितिवृत्तिमान् देव अवर्षत्यसौ देवो नरदेव वपुर्हरिः प्रचप्राणाः प्रजाह्येष रक्षिष्यते अंजसेन्द्रवत् आप्याययत्यसौ लोकं पतनामृतमूर्तिना साणराहावलोकेन व्यसदस्मितचारुणाम् अव्यक्तपद्मेश निगूढकार्यो गम्भीरवेद उपगुप्तवित्तः अनन्तमाहात्म्य पुनैकतामा प्रदुप्रचेद इव सम्प्रतात्मा दुरासदो दुर्विशः आसन्नाभिविदुरवत् नैवापि भवितुं शक्यो वेनारञ्जुत्थितो अनलः अन्तर्बहिश्च बोधनं पश्यन् कर्माणि चारणेः उदासीन इवात्यक्षो आत्मैव देहिनां न दण्ड्यं दण्डयत्येष न दण्ड्यं दण्ड्यत्येष सुतमात्मत्विषामपि दण्डयत् आत्मजम् अपि दण्ड्यं धर्मपदे स्थितः अस्य अप्रतिहतं चक्रम प्रदरामाणसाचलात् वर्तते भगवानस्को यावत् तपति गोगणैः रञ्छे शरीरल्लोहमयम् आत्मविशेषतैः अदामुमाहुः राजानं मनोरञ्जनकैः प्रजाः दृढव्रत सत्यसन्तो ब्रह्मण्यो वृत्तसेवकः शरण्यः सर्वभूतानं माणतुतीनवत्सलः मातृभक्तिः परस्त्रीषु पत्न्यामर्थ इवात्मनः प्रजासु पितृवत्स्निग्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनां देहिनम् आत्मवत् श्रेष्ठः सुहृतं नन्दिवर्तनः भक्तसङ्गप्रसङ्गो अयं दण्डबाणिर् असाधुषु अयं च साक्षात् भगवस्त्रयदेशः कूढस्थ आत्मा कलयावदीर्णः यस्मिन् अविद्यारचितम निरर्थकं पश्यन्ति नानत्वमपि प्रतीतम् अयं भुवमण्डलं मोदयात्रे गोप्तैकवीरो नरदेवनाथः आस्थाय उज्जैत्रम् अधमात्तचापः पर्यस्यते दक्षिणतो यदार्कः अस्मिन् बालः किल तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकबालाः वंशन्त येषां स्त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तत्यश उत्तरन्त्यः अयं महिंगाम दुदिहे अधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकर प्रजानां यो लीलयात्रीन् स्वसरासगोट्य विन्तन् समं काम् आहुरोत्यदेन्द्रः विस्फुर्जयन् आजघपं धनुः स्वयं यदा चरत्क्ष्माम् अविशक्यमाजौ तदा निलिल्योद्दिशि दिश्य सन्तो लाङ्गुलमुत्यम्य यदा मृगेन्द्रः येषु अश्वमेधान् सदम् आजहार सरस्वती प्रादुरभावि यत्र अहारशेत्यस्य हयं वरन्दरः सदा क्रदश्चरमे वर्तमाने येष स्वसत्तमो भुवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तं एकम् आरत्य भक्त्या लभदामलं तत् ज्ञानं यदो ब्रह्म परं विदन्ति तत्र ग्रस्तस्ता इति विश्रुतविक्रमः शोष्यत् आत्माश्रितः गातः पृथुपराक्रमः यशो विजित्य अप्रतिरुत्तचक्रः स्वेदेजसोत्पादितलोकत्सल्यः सुरासुरेन्द्र उपगीयमान महानुभावो भविद पतिर्भुवः श्रीहरे नमः श्री नमः श्री नमः गोपिकाजीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द अथ सप्तदशोऽध्यायः मैत्रेवाच एवं स भगवान् वैन्यः चाभितो गुणकर्मभिः चन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्याभिनन्त्य च ब्राह्मणप्रमुखान् वर्णान् प्रत्यामात्य पुरोधसः पौराञ्चान् पतान् श्रेणिः प्रकृति समभोजयत् पितृवाच अस्मत् ददार गौरवं दरिद्री बहुरूपिणी यां ददोह पुल्पुदस्तत्र को वत्सो देवदोहनं च किं प्रकृत्या विषमा देवी कृता देन समाकतं
तस्य मेत्यं हयं देवः कस्य हेतुरपाहरत् सनत्कुमारात् भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्मविदुत्तमात् दत्त्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजशिकां गतिं गतः याचन्यत्यपि कृष्णस्य भवान् भगवत प्रभोः शव सुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेह कथाश्रयम् भक्ताय मे अनुरक्ताय तव चादुक्षजस्य च अक्तुमर्हति यो अदुहैत् वैन्यरूपेण गामिमां सदुवाच स्वयुतो विदरेणैव वासुदेव कथं प्रति रसस्यत्तम प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभाषते मैत्रेयवाच यदाभिषिक्त पृथ्रङ्गवैप्रहि आमन्त्रितो जनदायाश्च बालः अजा निरन्य क्षितिपृष्ठ ऐत्य येत्य क्षितिपृष्ठ येत्य शुक्षामदेहः पदिमप्यवोचन् वयं राजन् जाडरेण अभिदत्ता यथा कृणाकोडरस्तेन वृक्षाः त्वामत्यव्यातः शरणं शरण्यं साधितो प्रत्यकरपतिर्नः तन्नो भवान् नीखतु राधवे अन्नं क्षुधात्तिदानं नरदेवदेव यावन्न नक्ष्यामहे उज्जितोज्जा वार्तापतिस्तं किल लोकपालः मैत्रेयवाच पृथुप्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं मैत्रेयवाच पृथुप्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं तीर्थं तथ्यो गुरुश्रेष्ठ निमित्तमसो अन्वपत्यत इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीतशरासनः सन्तते विशिकं भूमेः स्त्रीपुरः यदा प्रवेपमाणतरणि यशंयोधायुधम् अच्युतं कौ सत्यं प्रातृवद्भिद बृहीत्रुताः तम अन्वतावत् तत्पैन्यः कुपितो अत्यरणेक्षणः सदं तनुषि सन्ताय यत्र यत्र पलायते सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं जतयोः तावन्ति तत्र तत्रैनं कदर्शाणुत्यदायुधं लोके नाविन्तत्राणं वैन्यां मृत्योरिव प्रजाः त्रस्ता तथा निवव्रते तद् येन विधूयत उवाच च महाबाहं धर्मज्ञापन्नवत्सल त्राहि मामपि बोधानं पालने अवस्थितो भवान् सत्वं जिकांससे कस्मात् दीना अकथकिल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मदः प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृदागस्पवि चन्तपः किमुदत्पत्यता राजन् करुणदीनवत्सलाः मां विपाट्याचरां नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मनं च प्रजाश्चयमः कथमम्बसि दास्यसि मृदुर्वाच वसुदेत्वां वदिष्यामि मच्चासन परामुखीं भागं वर्षसि या वृन्ते न तनोदिच्छनो वसु यवसं जक्त्यानुदिनं नैव दोक्त्यौदसं पयः तस्यामेव हि दुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते त्वं कल्वोषधि बीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्य आत्मवृत्तानि माम अवज्ञाय मन्तदिः न मुञ्चस्य आत्मवृत्तानि मम अवज्ञाय मन्तदिः अमुषं सुत्परिधानम् आर्तानं परिदेविदं समयिष्यामि मद्बाणिः भिन्नायास्तव मेधसा समयिष्यामि मद्बाणिः भिन्नायास्तव मेधसा उमान् योषित्वद क्लीब आत्मसंभावनो अतमः उदेशनक्रोशः निर्वाणम तत्पदो अवदः त्वां स्तप्तं दुर्मदां नीत्वा मायागम तरसशरैः आत्मयोः बलेनेव तारयिष्यामि अहं प्रजाः एवं अन्यमयं मूर्तिं कृतान्तमिव प्रदम प्रणदा प्राञ्जलिः प्राह मही सञ्जातवे बधुः धरो उवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानादलवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवे निर्दुत द्रव्यक्रियाकारक विप्रमोर्मये येन अहम् आत्मा यदनं विनिर्मिदा तत्र यदो अयम गुणसर्गसङ्ग्रहः स एव मां हन्तुम् उदायुध स्वराट् उपस्थितो अन्यम शरणं कमाश्रये ये एतद् आदावसृजत् चराचरम् ये एतत् आदौ असृजत् चराचरम् स्वमायया आत्माशयया अभिदर्क्येया आत्माशयया अभिदर्क्यया तयैव सो अयम किल भवतमुच्यतः कथं न मां धर्मपरो जिगांसति नूनं वदे सस्क्य समीहितं जनैः तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्ताहरोत् आहारयत् यो अनेक एक परदश्च ईश्वरः सर्गादियो अस्यानुरुणत्ति शक्तिभिः द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मभिः तस्मै समुन्नत निरुत्तशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे स वै भवान् आत्मविनिर्मितं जगत् बुद्धेन्द्रिय अन्धकरणात्मकं विभो
संस्थापयिष्यन्न च मां रसातलात् अप्युज्जहाराम्बस आदिसुगरः अभम् उपस्थे मयि न व्यवस्थितः प्रजा भवानत्यरिरक्षुषुः किल स वीरमूर्तिः समुपत् धराधरो यमं पयसुखरसलो जिगांससि नूनं जले ईहिदमीश्वराणाम् अस्मद्यदिस्तत् गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचित्तवत्तभिः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः श्री हरे नमः श्री नमः श्री नमः गोपिकार्जुनस्मरण गोविंद गोविंद अदाष्टादशाध्यायः मैत्रेयवाच इत्थं प्रथम अभिष्टो यरुषा प्रस्फुरिदातरं पुनराह वनिर्भेद संस्थप्यात्मनम् आत्मना सन्निगच्छामि वो वन्यं निबोधश्राविदं च मे सर्वदा सारमादत्यः यदा मधुकरो बुधः अस्मिन् लोके अथवामुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगः प्रयुक्ताश्च पुंसां शय्यप्रसिद्धये तान् आदिष्टति यः सम्यक् उभायान् पूर्वदर्शितान् अवरसत्तयो वेद उभयान् विन्तते अंजसा तान् अनाश्रित्य यो विद्वान् अर्थान् आरभते स्वयं तस्य व्यभिचारन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः पुरा सृष्टः ह्योषतयो ब्रह्मणा या विशाम्पदे भुज्यमाना मया दृष्टः असद्भिर् आतृतव्रतैः अबालितानातृता च भवद्भिर्लोकपालकैः चौर्यबोधादलोके अहम यज्ञात् अक्रसम् ओषधिः नूनं ताविरतः कृषिण मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवान् आदातुमर्हति वत्सं कल्पय मे विरह येन वत्सला तव दोक्षे क्षीरमयान् कामान् अनुरूपं च दोहनं दोक्तारं च महाबाहो बोधानं बोधभावन अणुवीप्सितम् ऊर्जस्वत् भगवान् वाञ्छते यदि समं च कुरु मां राजन् देववृष्टं यदा पयः अवर्तावु अपि वर्तन्ते उभावर्तेद मे विभो इति प्रियं हितं वाक्यं भव आदाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनुं पाणौ अदुहत् सकुलौषधिः वत्सं कृत्वा मनुं पाणौ अदुहत् सकुलौषधिः तदा परेच्च सर्वत्र सारमादतते बुधः तदन्यच्च यदा कामं दुदुः पृथुभाविदां ऋषिक दुदुः देवीम् इन्द्रियेष्वद सप्तम वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्चन्दोमयं शुचि कृत्वा वत्सं सरगण इन्द्रं सोमम् अदुदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः तैतया दानवा वत्सं प्रह्लादम् असुरशवं विदाया दुदुहन् क्षीरमय पात्रे सुरासवं गान्धर्व अप्सरसो अदुक्षन् पात्रे पद्मपये पयः वत्सं विस्पापसं कृत्वा गान्धर्वं मधुसौभगं वत्सेन पितृर्यम्न कव्यं क्षीरम् अदुक्षत आमपात्रे महाभागः श्रुत्या शात्तदेवतः नकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धः सङ्कल्पनामयीं सिद्धिं नवस्य विद्यां च ये च विद्याधरादयः अन्यच्च मायिनो मायाम् अन्तर्तानात्पुतात्मनां मयं प्रकल्प्य वत्सन्ते दुदुहुर्धारणामयीं यक्षरक्षांसि बोधानि पिशाचः पिशिदाशनाः बोधेशवत्सा दुदुहुः कपाले शतजासपं तदा हयोतन्तशुखः सर्वनाहश्च तक्षकं विदाय वत्सं दुदुहुर्बिलपात्रे विषम्पयः पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपाते साधुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंशिनः क्रव्यादा प्राणेन कव्यं दुदुहुः स्पे कलेवरे सुवर्णवत्सा विहगाश्चरं चाचरं ये वच्च वडवत्सा वनस्पतिः पृथक् रसमयं पयः गिरयो हिमवत्वत्सा नानाधातुन स्वसानुषु सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः सर्वकामदुगां प्रत्यं दुदुहुः पृथुभाविदाम् एवं प्रक्पादय प्रत्यम् अन्नादः स्वर्णमात्मनः दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं गुरुत्वः तदो महीपति प्रीतः सर्वकामदुगां पृथुः दुहित्रत्वे चकारे मां प्रेम्णा दुहित्रवत्सलः चूर्णयेन स्पदनुष्कोट्य गिरिकूडानि राजराट्टे भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायचक्रे समं विभुः अदास्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानां मृत्युतप्यता निवासान् कल्पयान् चक्रे तत्र यदार्हतः रामान् पुरः पत्तनानि दुर्गानि विविधानि च कोशान् ब्रजान् ससिविरान् आहारान् केडगर्भटान्
प्राक् प्रदोरिहस्नैवेशा परक्रामादिकल्पना यदा सुगम वसन्ति स्म तत्र तत्राहुदोपयाः. அதாவது அங்கங்க வைன்யன் வைன்யன் வைன்யன்னு வருது. அந்த வேணனுடைய அந்த வேணம் பேரை வச்சே புது சக்கரவர்த்தியை சொல்றாங்க. அந்த வைன்யன் அந்த வைன்யன் அந்த வைன்யன் ஸ்ரீஹரே நம ஸ்ரீ நம ஸ்ரீ நம கோபிகாஜ் கோவிந்தா கோவிந்தா. அதுதான் என்னதான் நல்லவனா இருந்தாலும் அந்த குலத்தினுடைய பேர்னால கெட்ட பேர் ஆயிடுது பாரு நல்லவங்க. அதே குணம் சத்திய मैत्रवाच अदादीक्षित राजा तो हयमेध सदेन च सह ब्रह्मावत्ते मनोक्षेत्र यत्र प्राची सरस्वती तथा विप्रत्य भगवान कर्मादि तथा विप्रत्य भगवान कर्मादिशयमात्मनः शतक्रतुर्णमृषे पृथुर्यज्ञ महोत्सवं यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान हरिश्वरः अन्वभूयते सर्वात्मा सर्वलोक गुरुप्रभुः अन्वित ब्रह्म सर्वाप्यां लोकपालिः सहानुकैः उपगीयमानः गन्धर्वे उपगीयमानो गन्धर्वे मुनिभिश्च अप्सरो गणैः सिद्धा विद्याधरा दैत्य दानवा गुह्यगादिः सुनन्दनन्द प्रमुखः पार्षद प्रवरा हरेः कपिलो दत्तः योगेशः सनकादयः तमन्वीयुर्भागवदा ये च तत्सेवनोत्सुकः यत्र धर्मदुःखापमेः सर्वकामदुःखा सति दोक्ति स्माभिप्सितान्नत्तान् यजमानस्य भारत ऊह सर्वरसान्नत्यः शिरदत्यन्न घोरसान् तरवभूरिकष्माणः प्रासुयन्त मदच्छतः सिन्तवरत्ननिखरान् गिरयो अन्नं चतुर्विधम् उपायनम् उपाचक्रुः सर्वे लोकाः सपालकः इति चादोक्षजेसस्य हृदोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवान् इन्द्रः प्रतिघातम् अचिकेरत् चरमेण अस्ममेधेन यजमाने यजुष्पतिम् वैन्ये यज्ञवशं स्पत्त नभोवाह तिरोहितः तमित्र भगवान् ऐक्षत् त्वरमाणं विहाय स आमुक्तमिव भाखण्डं यो अधर्मे कर्म विप्रमः अत्रेण चोदितो हन्तं पृथुपुत्र महारथः अन्वदावद संवृत्तस्तिष्ठतिष्ठेति च प्रवृत्ति स तादृशा कृतिं वीक्ष्य मेने धर्मं शरीरिणं जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मै बाणं न मुञ्चति पदान्निवृत्तं तं भूयो हन्तवे अतिराचोदयत् जहि यज्ञहनं ताद महेन्द्रं विबुधातमम् एवं वैन्यसुतप्रोक्तस्तरमाणं विहाय स अन्वत्रवत् अभिकृतः रावणं कृतराडिव स्वस्वं रूपं च तत्थित्वा तस्मा अन्तर्हितस्पराट् वीरस्वपशुमादाय पितुर्यज्ञम् उभेयवान् तस्य चात्पुदं कर्म विचक्ष्य परमर्शयः नामधेयं तदस्तस्मै वजितास्मैति प्रभो उत्सृज्य तमस्तीव्रम जहारास्मं पुनर्हरिः चशाल युवदश्चन्नः हिरण्यरश्नम विभुः अत्र सन्दर्शयामास त्वरमाणं विहाय स अबालकट्पाङ्गरधरं वीरो नयनम् अबादते अत्र न चोदितस्तस्मै सन्तते विशिखं रुषा स्वस्वं रूपं च तत्यक्त्वा तस्थौ अन्तर्हितस्वराट् वीरश्चास्मम् उपादाय पितर्यज्ञमदाव्रजत् तदवद्यं हरेरूपं चक्रुर्ज्ञानदुर्बलाः ज्ञानिरूपाणि चक्रुहे इन्द्रो हयजिहेशया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डम् इहोच्यते एवम् इन्द्रे हरत्यस्वं वैन्ययज्ञ जिघांसदया तद्गृहीतविसृष्टेषु पाखण्डेषु मदेन्द्राणां धर्म इत्युपधर्मेषु नक्तरक्तपडादिषु रायणे सज्जते भ्रान्त्या एषलेषु च वाक्पिषु तदभिज्ञाय भगवान् पृथुपराक्रमः इन्द्राय कुपितो बाणम् आदत्तोत्यत कार्मुकः अमृत्वज चक्रवदाभि सन्तितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यम् असह्य रंहसं निवारयामासुरहो महामदे न युज्यते अत्र अन्यवद प्रचोदितात् न युज्यते अत्र अन्यवदः प्रचोदितात् न युज्यते अत्र अन्यवद प्रचोदितात् वयं मरुत्वन्तम् इहार्तमनाशनं हवयामहे तत्सवसा हतत्विषम् अयादयामोप हवेर अनन्तरम प्रसख्य राजन जुहवाम दे अहितम इत्यामन्त्रे कृतपतिम वेदरास्यात्विजो वृषा शुष्कस्थान् जिह्वद अप्यद्य स्वयंभुः प्रत्यसेदत न वत्यो भवदामिन्द्रो यत्यज्ञो भगवत्तनु यं जिगांसद यज्ञेन यस्यष्टस्तदव सुराः अदितं पश्यद महद्धर्म व्यधिकरम मृत्युजाः इंद्रेण अनुष्ठितं राज्ञः कर्मैदत्त त्वज
कर्मैदत्ते इंद्रन अनुष्ठितं राक्षः कर्मैदत्ते विजिकां सदा प्रतिगत्ते हे प्रदोर्भूयात् दर्ह्ये दर्ह्ये दर्हि दर्हि एगोन सतकृतुः दर्हि येकेन सतकृतुः अनन्तकृतिभिः सृष्टे यद्भवान् मोक्षधर्मवित् नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि उभावभिः बत्रन्ते उत्तमश्लोकविग्रहौ मास्मिन् महाराज कृताः स्मच्चिन्तां यशा मया स्मत्वच आतुरात्मा यशा मया स्मत्वच आतुरात्मा यज्जायतो दैव हतं तु कर्तुम् अणु अधिरुष्टम विशदे तमोऽन्तं कदुर्विरमदां येष देवेषु दुरवक्रः धर्मव्यधिकरो यत्र पाखण्डिर् इन्द्रनिर्मितैः येभिरिन्द्रोपसंसृष्टिः पाखण्डिर्हारिभिर्जनम् ह्रियमाणं विचक्षुवैनं यस्ते यज्ञतृक् आस्पमुट्टे भवान् परित्रातुम् इहावतीर्नो धर्मं जरणं समयानुरूपम् येनापचारात् अवलुप्तमत्य तद्देहोद विष्णुखलासित वैन्यः स त्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते संकल्पनं स त्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते संकल्पनं विश्वसुजां विबिब्रूहि ऐन्द्रं च मायम् उपधर्ममातरं प्रचंड पाखंड पदम प्रभो जहि मैत्रिवाच इत्थं सलोकगुरुणा समादिष्ट विषांपतिः तदा च कृत्वा वात्सल्यं मकोणापि च सन्तते कृतौ अवप्रदस्नाय पृथिवे भूरिकर्मणे वरान् तदस्ते वरदाये तद्बर्हिषि तर्पिताः विप्रा सत्याशिषस्तुष्टः श्रद्धया लब्धदक्षिणः आशिषो युजुः शत्र आदिराजाय सत्कृताः त्वया आहुता महाबाहो सर्वे एव समागतः भोजिता दानमानप्यं पितृदेवर्षिमानवाः श्री हरे नमः शर्म नमः गोविंद गोविंद अधविंशत्येयः मैत्रिवाच भगवान् विवैकुण्ठ साकं भगवता विभुः यज्ञपरिस्तुष्टः यज्ञवक्तमभाषत श्री भगवानुवाच एष ते अहर्षेत् भयं भङ्गम् अयमेध सदस्यः क्षमापयद आत्मानम् अमुष्यः सन्तमर्हसि सूर्य साधवो लोके नरदेव नरोत्तमः नाभिदृह्यन्ते उद्बोधेभ्यः गर्ह्यनात्मकलेवरं पुरुषा यदि मुख्यन्ते त्वादृशा देवमय्य समयैव परं जातः दीर्घया वृत्तसेवया अधकायमिमं विद्वान् आभित्य कामकर्मभिः आरब्ध यदि नैवास्मिन् प्रतिबुद्ध अनुसज्जते असंसक्त शरीरे अस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे आबद्य द्रविणे भाविकः कुर्यान् ममतां पुतः एकसुत्तः स्वयं ज्योतिर् निर्गुण असौ गुणाशयः सर्वगो अनावृत साक्षी निरात्मा आत्मा आत्मनपरः ये एवं सन्तम् आत्मानम् आत्मस्थं वेदपुरुषः नाद्यते प्रकृतिस्थो अभितद्गुणैः स मयि स्थितः यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशे सत्त्वयान्वितः भजते शनकस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति परित्यक्तगुणः सम्यक् दर्शनो व्यसदाशयः शान्ति मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते उदासीनं विवात्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनां कूढस्थमिमो आत्मानं यो वेदाप्नोति शोभनं भिन्नस्य लिंगस्य गुणप्रवाहो द्रव्यक्रियाकारक चेतनात्मनः दुष्टासु संवत्सु विवत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि भक्तसौहृदाः समसमानोत्तमं मध्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मयोपक्लुप्त अखिल लोकसंयुतो विदस्ववीर अखिल लोकरक्षणं शय प्रजापालनं एव राज्ञः यत्साम्पराये सुहृदात् षष्ठमंसम् हत्वान् यदा तदपुण्य प्रजानाम् आरक्षित हरहारो अगमत्ति एवं त्रिराक्रिया अनुमदानुवृत्त धर्म प्रधानो अन्यतमो अभिदास्याः एवं त्रिराक्रिया अनुमद अनुवृत्तं धर्म प्रधानो अन्यतमो अभिदास्याः तस्मेन कालेन बहुवयादान्ने भ्रष्टास्य सिद्धान् अनुरक्त लोगः परं च मत् कंचन मानवेन्द्र अनिश्वदे अहम गुणशील यंत्रितः नाहं महेर्वै सुलभस्तभोभिः योगेन वा मत् समचित्तदर्वी यत् समचित्तवर्ती योगेन वा यत् समचित्तवर्ती मैत्रिवाच स इत्थं नाहं महेर्वै सुलभस्तभोभिः योगेन वा मत् नाहं महेर्वै सुलभस्तभोभिः योगेन वा यत् समचित्तवर्ती मैत्रिवाच स इत्थं लोको गुरुणा विश्वक्सेन विस्फुजित्
अनुशासित आदेशं सरसा जगृहे हरिः स्पृशन्तं पादयो प्रेम्णा क्रीडितं स्वेन कर्मणा सदकृतं परिष्वज्य विद्वेषं विसर्जः भगवानद विश्वात्मा प्रदनोपो हृदार्हणः समुज्जिहाणया भक्त्या गृहीतचरणाम्बुजः प्रस्थानाभिमुखो अप्ययनम् अनुग्रह विलम्बितः पश्यन् रत्नफला साक्षुर्ण प्रतस्ते सुहृत्सदां स आदिराजो रचिताञ्जलिर्हरिम विलोकितम् नाशयत् अश्रुलोचनः न किञ्चन वाच स बाष्पविक्लवो हृदोपगुह्याम् हृदोपगुह्य अमुम् अदात् अवस्थितः अव अधमृज्याश्रुकला विलोकयन् अतृप्तदृक् गोचरं माह पुरुषम पदास्पृशन्तं शिग्मं स उन्नते विन्यस्त हस्ताक्रम उरंग विक्रविद्विषः विन्यस्त हस्ताक्रम उरंग विद्विषः पुदुर्वाच वरं विभो त्वद्वरदेश्वरात् बुधः कथं रणिते गुणं विक्रिय आत्मनां ये नारकाणाम् अपि सन्ति देहिनां प्राणेश कैवल्यपदे वृणेन च न कामयेन ततप्यहं क्वचित् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमन्तर्हृदयान्मुखच्युतो विदस्व कर्णायुधं येषमे वरः महत्तम अन्तर्हृदयान्मुखच्युतो विदस्व कर्णायुधं येषमे वरः स उत्तमश्लोक महन्मुखच्युतः भवत्पदाम्बोज सुधाखणानिलः श्रुतिं पुनर्विस्फुट तत्त्ववत्मनां कुयोगिनं न वितरत्यलं वरैः यशशिवं सस्वभार्य संगमे यथोत्सिका च शृणोति दे सकृते कथं गुणज्ञ विरमेत् विना पशम श्रीयत् प्रभव्रे गुणसंग्रहेच्छया अदा भजेत्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरे बलारसः आप्यावयोर् एकपदिस्पृदो कलिः न स्यात् कृतत्वच्चरणैक दानयोः जगज्जनन्यं जगदीश पैससम स्यादेव कर्मणि न समीहितं हरोषि पल्क्याप्युरु दीनवत्सलः स्पयेव दिष्ट्या अभिरतस्य किं दया भजन्त्यते त्वामदयेव साधवो उदस्तमाया गुण विप्रमोदयं भवत्पदान् स्मरणार्थे सदां निमित्तमन्यत् भगवन् विद्महे मन्ये गिरन्ते जगदां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेदि भजन्तमात्तयत् पाशानुतन्त्या यदि ते जनो असितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः तन्माययत्त जन ईश खण्डितो यदन् यदा शास्त्र उदात्मनो बुधः यदा चरेत् बालहितं पिता स्वयं तथा त्वं ये बार्हसि नः समीहितम् मैत्रवाच इत्यादि राजनेन्द्र स विश्वदृक् तमाह राजन् मयि भक्तिरस्तु ते दृष्ट्यतृषि धीर्मयि ते कृता मया मायां मदीयं तरति स्म दुस्त्यजां तत्त्वं गुरु मया आदिष्टम् अप्रमत्तः प्रजापते मदादेशकरो लोकः सर्वात्राप्नोति शोभनं मैत्रवाच इति मन्यस्य राजर्षि प्रतिनन्त्यार्थवत्वचः ओजितो अनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्राच्युतो मदिं देवर्षि पुत्रकान्तर्वसिद्धचारणपण्डकाः किन्नराप्सरसो मत्यः खगाभूतान्यनेकशः यक्षस्वरधिया राज्ञा वाक्वित्ताञ्जलि भक्तितः सपाजितायो सर्वे वैकुण्ठ अनुगतास्ततः भगवानपि राजर्षे स्वोपाध्यायस्य चाच्युतः हरण्यवमनो अमुष्यः स्वतां प्रत्यपत्यत अदृष्टाय नमस्कृत्य ध्रुवसन्दर्शितात्मने अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययो श्रीहरे नमः श्री नमः श्री नमः गोविंद 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 अधिकविंशत्ययः मैत्रवाच मौक्तिः कुसुमशक्भिः विगुलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिः दुर्भैरमण्डितं तत्र वै चन्दनाकुरुतो यात्रैः अत्याचत्वर मार्गवत् पुष्पाक्षत बलैस्तौपैः राजेन अर्चिभिरर्चितं सवृद्धैः कदलीस्तम्भैः बोधबोधैः परिष्कृतं हरपल्लवमालाभिः सर्वदा समलङ्कृतं प्रचास्तं दीपबलिभिः सम्प्रदा शेषमङ्गलैः आभिर्मृष्टकन्यास्तः मृष्टकुण्डलमण्डिताः सङ्गदन्तिविकोशेन ब्रह्मकोशेन चतुजां निवेशभवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः भोजितः पूजयामास तत्र महायशः पौराञ्जानपदास्तां प्रयितः प्रियवरप्रदः स एवम् आदिन् अणवत्य चेष्टितः
कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् शशासौ अवनिमण्डलं यशः स्फीदं निधाय आरुरुहे परं पदं सुदोवाच पदादिराजस्य यशो विजृम्भितं गुणैरशेषैर्गुणवत्सभाजितं शत्ता महाभागपद सदस्पतेः कौशारव्यं प्राह गृणन्तमर्चयन् पितृवाच स अभिक्षिप्त पितृविप्रैः लब्धाशेषं सुरार्हणः विप्रत्स वैष्णवं तेजो बाह्वोर्व्याप्यां तदोहगां कोन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञो यद्विक्रमोच्छिष्टम् अशेषभूभाः लोकाः सफला उपजीवन्ति कामम् अद्यापि तस्मै पद कर्म सूत्रम् मैत्रिवाच गंगा यमुनयोर् नृत्योर् अन्तराक्षेत्रमावसन् आरब्धानेव बुभुजे भोगान् पुण्यजिहासया सर्वत्रास्कलिदादेशः शब्दद्वीपैकदण्डदृक् अन्यत्र ब्राह्मणकुलात् अन्यत्र अच्युतगोत्रज अन्यत्र ब्राह्मणकुलात् अन्यत्र अच्युतगोत्रदः एकदा आसीन् महासत्र दीक्षा तत्र दिवौगसां समाज ब्रह्मऋषिणां च राजऋषिणां च सप्तम तस्मिन् अर्हत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्थतः उत्थित सदसो मध्ये धारणाम् उडुराडिव रामसभिना यदभुजो पौरः कञ्चारुणेक्षणः सुनाससुमुख सौम्यः पीनां सत्सुत्वजस्मितः योडपक्षः बृहत्श्रोणीर् बलिबल्गु तलोदरः आवर्तनाभिर्ओजस्वी काञ्चनोरुतत्क्रवात् सूक्ष्मवक्रासि तस्निग्ध मूर्तज कम्बुकन्तरः महादने दुकूलाक्रिये परिदायोपवीय च कञ्चिदाशेषगात्रश्री नियमे न्यस्तभूषणः कृष्णाजनतरः श्रीमान् कुशवाणिः कृदोचितः शिशिरस्निग्धदाराक्षः समीक्षत समन्ततः ओचिवान् इदम् उर्विसः सदः संहर्षयन्निव चारुचित्रपदं श्लक्ष्णमृष्टं दृष्टुं कूडम् अभिक्लबं सर्वेषाम् उपकारार्थं तदा अनुवदन्निव आदिवास सप्त शृणुतपत्रं वः साधवोऽय इहागतः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मम् आवेद्यं स्वमनीषितम् अहं दण्डधरो राजा प्रजानामेह योजितः रक्षितः वृत्तितस्वेषु शेरुषु स्थापितः पृथक् तस्य मे तदनुष्ठानात् यानाहुर्ब्रह्मवादिनः लोकस्युः कामसन्दोहः यस्य दुष्यते दुष्टबुद्धृक् स उत्तरेत् करं राजा प्रजा धर्मेषु आशिक्षयन् प्रजानां समणं भुङ्क्ते भगं च स्पं जहाति सः तत्प्रजापत्रिपिण्डार्थं स्वार्थम् एव अनसूयवः उदतादोक्षज दयस्तर्हि मे अनुग्रह कृतः योजम तदनुमोदत्वं पितृदेवर्षयोऽमलः कर्तुशास्त्रम् अनुज्ञादुः तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम् अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चित् अर्हसत्तमाः इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः मनोरुत्तानपातस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः प्रियव्रतस्य राजेश अङ्गस्य अस्मत् पितुः ईदृशाणाम् अदान्येषाम् अजस्य च भवस्य च प्रसादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाप्रदा दौहित्रादीन् हृदे मृत्यो शोच्यान् धर्मविमोहितान् वर्गस्वर्ग अपवर्गाणां प्रायेणैघात्म्य हेतूनां यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनाम् अशेषजन्मोपचितं मलं दियः सत्यक्ष्णोत्य अन्वहमेदति सदि यदा पदाङ्कुष्ठविनिश्रुता सरित् विनिर्तुता शेषमणोमल पुमन् असङ्ग विज्ञान विशेष वीर्यवान् यदङ्ग्रिमूले कृतकेतन यदङ्ग्रिमूले कृतकेतन पुनर्न संस्कृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते तमेव युजं भजतात्मवृत्तिभिः मनोवच कायगुणैः स्वकर्मभिः अमायेन कामदुःखङ्ग्रिपङ्कजं यदाधिकारा अपसिदार्थसिद्धयः असाभिः अनेक गुणो अणुगुणो आत्मरः पृथक् पृथक्द्रव्यगुणक्रियोक्तिभिः संबध्यते अर्थाशयलिङ्गनामभिः विशुद्धविज्ञानगणस्वरूपतः प्रधानकालाशय धर्मसङ्ग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनां क्रियाफलत्वेन विभाव्यते यथा नलोता ऋषौ तद्गुणात्मकः अहो ममामि विदरन्त्यनुग्रहं हरिं गुरुं यज्ञभुजाम् अधीश्वरम् स्वधर्मयोगेन भजन्ति मामकः निरन्तरं शोणितले दृढव्रतः मा जातुतेजः प्रभवेन महत्तिभिः तितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने अजुदेवदानां कुले स्वयं राजकुलात् ब्रह्मण्यदेव पुरुष पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्तनात्
अवावलक्ष्मीम् अनवायिनीं यशो जगत् पवित्रं च महत्तमाकृणिः यच्चैवया शेष गुहाशय स्वराट् विप्रप्रिय तुष्यति काममेश्वरः तदेव तद्धर्म परे विनिधिः सर्वात्मन ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् पमं लवेदान् अधिवेलमात्मनः प्रसीदतो अत्यन्त शमम स्वतस्वयं यन्नित्य सम्बन्ध निषेवया ततः परं किमत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम् अस्नात्यनन्तः खलु तत्त्वगोवितैः प्रसत्ता हुदं यन्मुख इज्जनामभिः अवै तथा चेतनया बहिर्षुदे उदाशने पारमहंस्य पर्यगुः यद्ब्रह्म नित्यमिरजं सनातनं सत्तादवो मङ्गलमौन संयमिः सत्तादव मङ्गलमौन संयमिः समाधिना विप्रति हार्तदृष्टये यत्वेदमादर्श इवावभासते तेषामहं पादसरोजरेणु मार्या महेयादि किरीटमायुः यं नित्यदा विप्रत आसुभावं नश्यत्यमं सर्वगुणा भजन्ति गुणागिनं शीलधनं कृतज्ञं प्रत्याशयं सर्वं संवृणिते अनु संवदः सम्पदः प्रसीदतं ब्रह्मकुलं गवं च धनातन सानुचरश्च मह्यम् मैत्रेयवाच इति ब्रुवाणं द्रौपदीं पितृदेवत्वजादयः दृष्टवषष्टमनसः साधुवादेन साधवः पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवतीर्षुधिः ब्रह्मदण्डहतपापः यत्तेन अत्यत्तरतमः हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः विवक्ष अद्यघात् सूणोः प्रहृतस्य अनुभावतः वीरवर्यपितप्रत्यः समः सञ्जीवः शाश्वतीः यस्य दृश्यच्युते अच्युते भक्तिः सर्वलोकैकवर्तरी अहो वयं क्षत्य पवित्रकीर्ते अयैवनादेन मुकुन्दनाथः यावत्तमश्लोकतमस्य विष्णोः ब्रह्मण्यदेवस्य कथं जनक्ति नात्यद्भुतमिदं नाथः तदा जीव्या अनुशासनम् अजानुराघो महतां प्रकृतिः करुणात्मनाम् अत्यनस्तमसः पारस्तु उपसादिते प्रभो ब्राह्म्यदनष्टदृष्टिनं कर्मवेद दैव संज्ञितैः नमो विवर्त सत्त्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्मक्षत्रमाविश्य विवर्तिदं स्वतेजसा श्रीहरि नमः शर्मशर्मो गोविंद स्मरण गोविंद गोविंद आदत्वाविंशत्यः मैत्रेयवाच जनने प्रकरणत्वस्यैवं प्रथमं पुत्रविक्रमं तत्रोपजग्मुर्मणयश्चत्वारः सूर्यवर्चसः तांस्तसित्ते स्वरान् राजः व्योम्न अवतरतो अच्छिषा लोकान् अपापान् कुर्वत्यः साणुः अचष्टलक्षितान् तत्तत्सुनुद्गतान् गदान् प्राणान् प्रत्यादित्सुरिवोत्थितः स सतस्यानुगो वैन्यः इन्द्रियेषु गुणानिव गौरवात्यन्त्रितः कश्यप्य प्रक्षयानतगन्तरः विधिवत्तु पूजयाञ्चक्रे गृहीतात्यर्हणासनान् अत्पादशौचसलिले मार्जितालगन् पंतनः तत्र शीलपदं दत्तमाचरन् माणयन्निव हाडगासन आसनन् स्वदिष्णेष्विप पावगान् सत्ता संयम संयुक्तः प्रीतप्राह बभाक्रजान् तद्वाच अहो आचरितं किं मे मङ्गलमङ्गलायनः यस्य वो दर्शनं हासित् दुर्दर्शनं च योगिभिः किं तस्य दुर्लभतरमिह लोके परत्र च यस्य प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च साणुगः नैव लक्ष्यते लोहो लोहान् पर्यटतो अभियान् यदा सर्वदृशं सर्व आत्मानं ये अस्य हेतवः अदना अभिदे अदन्यः साधव प्रथमेदिनः यद्गृहाख्यर्घ्यवर्ग्याम्बु तृणभूमिस्परापराः व्यालालयत्रुमान् वैदे अप्यारिक्ताखिलसम्पदः यद्गृहस्तीर्थपादीये पादतीर्थविवर्जितः स्वागतं दिवो त्यजषष्टा यत्प्रदाने मुमुक्षवः चरन्तु शतयाधीरा बाला एव बृहन्ति च कश्चन कुशलं नाथ इन्द्रियात्तात् वेदिनां वसनाभाव एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः भवत्स कुशल प्रश्न आत्मरामेषु नेष्यते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मदिवृत्तयः तदहं कदपृष्टम्भः सुहृदस्तपस्विनां सम्भृच्य भवेत् तस्मिन् क्षेमकेनाञ्जसा भवेत् व्यक्तम् आत्मपदाम् आत्मः भगवान् आत्मभावनः स्वाणम् अनुग्रहाय मां चित्तरूपी चरत्यजः मैत्रेयवाच पृथस्तत्र सूक्तमागन्य सारं सुष्टुमिदं मधु स्मयमान इव प्रत्याकुमारः प्रत्युवाचः शरणकुमार उवाच साधुपृष्ठ महाराज सर्वभूतहितात्मना भवदावति साक्षापि साधूनां
अधिऋतृषे संगम खलु साधूनाम् उपयेशं च संवदः यत् संभाषण संप्रस्तः सर्वेषां यतनोति तिष्ठम् अस्त्येव राजन् भवदो मदत्विषः पादरविन्दस्य गुणानुवादने यदुनोति नैष्टिकी कामं कषायं मणमन्तरात्मनः शास्त्रेष्वयानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सत्रेक्य विमर्शेषु हेतुः असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया शाश्वतया भगवद्धर्मचर्या जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वर उपासनया च नित्यं पुण्यश्रव कथया पुण्यजाच अत्यन्द्रिय राम सगोष्ठी अदृष्णया अत्यन्द्रिय राम सगोष्ठी अदृष्णया तत्समाधानम् अपरिग्रहेण च विवेक रुचा परिदोष आत्मन बिना हरिर्गुणपेयुषमाणात् अहिंसया पारमहंस्य चर्यया श्रुत्या मुहुन्ता चरिता अक्रिय सेदना यमेद अहमेद नेमश्चाप्यानिन्तया निरेखयत्वन्त तितिक्षया च हरिर्मुखस्तत् परकर्ण पूर्व गुणाभिधानन विजृम्भमाणया भक्त्या कसंग सदसत्यनात्मनि अनात्मनि स्यान् निर्गुणे सदसत्यनात्मनि स्यान् निर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्चसा हृदिः यदा हृदिर्ब्रह्मणि नैष्टिकी पुमान् आचार्यवान् ज्ञान विरागरम हसम रमहसा तहत्य वीर्यम हृदयं जीवकोशम पंचात्मकं योनि विभोतितो अग्निः रक्ताशय मुक्त समस्त तत्गुणौ नैवात्मनो बहिरंदर विचष्टे परात्मनो यत् व्यवधानो पुरस्तात् स्वप्न यदा पुरुषस्तत् विनाशे आत्मानं इन्द्रियार्थं च परम यत् उभयोरपि सत्याशय उपाद उभय पुमान् पश्यति नान्यथा निमित्त यशति सर्वत्र जलादावपि पुरुषः आत्मनश्च परस्यापि विदां पश्यति नान्यथा इन्द्रियविषयाकृष्टः आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनं हरदे बुद्धेः स्तम्भस्थोऽयमिव हरदात् पश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तं ज्ञानपरसः स्मृतिक्षयेः तत्त्वं कवये प्राहुर् आत्मा अवह्नवम् आत्मनः नादपरदरलोकः लोके पुंसः स्मार्तव्यतिक्रमः यदत्यन्यस्य प्रयस्त्वम् आत्मनः व्यतिक्रमात् अत्यन्त्यार्थ अभिज्ञानं सर्वार्थ बह्नवो नृणां प्रभ्रंसितो ज्ञानविज्ञानात्येनाविशति मुख्यतां न कुर्यात् कर्किचित् संगम तमस्तेवरं तितीर्षुः धर्मत्व काममोक्षाणं यदत्यन्तविघातकं तत्रापि मोक्षया वर्त आत्यन्तिकदयेष्यते त्रैवर्ग्यो अर्थो यदो नित्यं कृतान्तभय संविदः परे अवरे चयेत् भाव गुणवधिकराधनो न देशं विद्यदेशम् ईशवित्वं सिदाशिषां तत्त्वं नरेन्द्र जगतामद तस्तुषं च देहेन्द्रियासु दिशनात्मभिरावृदानं यः क्षेत्रवित्तपदया हृदि विश्वगाभिः प्रत्यक्षकास्ति भगवस्तमवे हि स्वस्मै यस्मिन्निदं सदसतात्मतया विभाति माया विवेक विदति सजे बाहि बुद्धिः तन्नित्यमुक्त परिशुद्ध विभुत्त तत्त्वं प्रत्योड कर्म कलिड प्रकृतिं प्रपद्ये यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं खदितम् उत्कृतयन्ति सन्तः तत्पन्न विविक्तमदयो यदयो अभि रुद्रस्रोतो गणस्तम् अरणं भज वासुदेवं तत्स महानिख भवार्णवम् अप्लवेशं षड्वर्गनक्रमसुगेन तिदीरशन्ति तत्त्वं हरिर्भगवतो भजनीयमङ्ग्रिं तत्पाडपं व्यसनम् उत्तर दुस्तरार्णम् स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेण आत्मवेदसा दर्शितात्मगतिः सम्यक् तस्योवाच तं ध्रुवः राजवाच कृतो मे अनुग्रहः पूर्वं हरिणा आर्तानुकम्पिना तम् आपादयितुं ब्रह्मण भगवन् यूयमागताः निष्पादितश्च कात्स्येनः भगवद्भिर्ऋणालुभिः साधुचिष्टं हिमे सर्वम् आत्मना सह किं तते प्राणाधारा सुधा ब्रह्मणो गृहश्च सम्परिच्छदाः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितं सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वम् एव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेण अन्नं वञ्चते क्षत्रियादयः यैरुतृषे भगवतो बधिरात्मवादे येहान्ततो निगमेभिः प्रतिपादितानः दृश्यन्ततप्रकरणाः करुणाः स्वकृतेन नित्यं कोणम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रं दृश्यन्ततप्रकरणाः सकृतेन नित्यं कोणम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रं
मैत्रिवाच स आत्मयोगपतये आदिराजेन पूजितः शीलं तदीयं संसत्तः के अभुवन् विशदां दृढां वैन्यस्तो दुर्यो महदां संस्थित्य अध्यात्मवे शिक्षया आप्तकामम् इवात्मानं मेनः आत्मनि अवस्थितः कर्माणि च यदा कालं यदा देशं यदा फलं यदोचितं यदा वित्तम् अकुरोत् ब्रह्म सत्कृतं फलं ब्रह्मणि वन्यस्यः निर्विशङ्ग समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्वानः आत्मानं प्रकृते परं ग्रहेषु वर्तमानो अविस साम्राज्यश्रियान्विदं न सज्जते इन्द्रियार्थेषु अर्हमदिर् अर्कवत् एवम् अध्यात्मयोगेन कर्मान् अनुसमाचरन् पुत्रान् उत्पादयामास पञ्चाशिष्यत् एवम् अध्यात्मयोगेन कर्मान् अनुसमाचरन् पुत्रान् उत्पादयामास पञ्चाशिष्य आत्मसम्पदान् विजितास्पन्दो प्रगेशं हर्यस्पन् द्रविणं गुरुगम सर्वेषां लोकपालानं ददारैके प्रदुर्गुणान् वविदाय जगत्सृष्टे काले स्पेस्ते अच्युतात्मकः मनोभक्तवृत्तिभिः सौम्यगुणैः संरञ्जयन् प्रजः राजत्यतान् नामधेयं सोमराज इवापरः सूर्यवत् सुजन् वृष्णन् प्रथमंश्च बुभो वसु दुर्दशस्तेजसे वाग्नि महेन्द्र इव दुर्जयः तिदिक्षया दरिद्रीव द्यौरिवाभीष्टदो दृढां वर्षति स्म यदा क्रमं भजन्देव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव धर्मराडिव शिक्षयाम् आश्चर्ये हिमवाणिव कुबेर इव कोशाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यदा मातरिस्वेव सर्वात्मा बलेन सकसो ओजसा अविशह्यतया देव भगवान् बोधराडिव कान्दर्पैव सौन्दर्ये मनस्वी मृगराडिव वात्सल्य मणुवन्नृणां प्रभुत्वे भगवानजः बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवद्ये स्वयं हरिः भक्त्या गोगुरुविप्रेषु पृष्ठक्षेण अनुवर्तिषु क्रिया प्रशयशीलाभ्याम् आत्मतुल्यः प्रवृत्य मे कीर्त्यत्वगीतया पुंभिस्त्रैलोक्ये यत्र तत्र कीर्त्यत्वगीतया पुंभिः त्रैलोक्ये तत्र प्रविष्टकर्णतन्त्रेषु स्त्रीणां रामः सदा विव ஸ்ரீ ஹரி நம சரண நம கோபிகாஜோஸ்மன் கோவிந்தா கோவிந்தா. அதாவது நிறைய சத்தங்கள் பயங்கரமான பாருங்க, மரத்தா இருக்கிறாங்க, இங்க சத்தம், இங்க கத்துறாங்க, பல விதமான சத்தங்களுக்கு நடுவில் நம்ம படிக்கணும்னா எவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் பாருங்க, இவ்வளவு தடங்கள் வருது. ஆனா பவன் நாமா சொல்றதுக்கு இவ்வளவு தடங்கள் வராது, பவன் நாமா சொல்றதுக்கு இவ்வளவு தடங்கள் வராது ராமநாமத்துக்கு. ஆனா பாகவதம் படிக்கணும்னு நினைக்கும் போதுதான் செம்ம தொந்தரவு கொடுப்பாங்க, நிறைய சப்தங்கள் டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறைய வருது. அங்க பார்த்தா கத்தினுக்குறாங்க, ஒரு பக்கத்துல ஒரு பக்கம் சண்டை போட்டுருக்காங்க, ஒரு பக்கம் பார்த்தா மரத்தை அறுத்துனுக்குறாங்க, ஒரு பக்கம் பார்த்தா ஏதோ சத்தம் கேட்டு நேருது. அதாவது தொல்லைகள் அதிகமா வருது, இந்த பாகவத பாராயணம் பண்ண முடியாத மாதிரி அவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது, அவ்வளோ சத்தங்கள் அங்கங்க சத்தம் வருது. ஒரு இடத்துல கத்தினா, ஒரு இடத்துல பார்த்தா இப்போதான் பயங்கரமா சத்தம் போடுறாங்க. நம்ம என்ன பண்றது? அப்ப நம்ம டென்ஷன் ஆகுமா ஆகாதா பாகவதம் படிக்கும் போது இப்ப சத்தம் போட்டா? அதனாலதான் நாம சங்கீர்த்தனம் நிம்மதியா இருக்கும். நாம சங்கீர்த்தனம் பாகவதம் படிச்சா களி கெடுக்கிறதுக்கு பல விதங்கள்ல உபத்திரவம் பண்ணுவான் பாகவதம் படிச்சா. ஆனா படிச்சு முடிச்சுட்டா களி போயிடுவான். பாகவத சிம்ம சப்தார்த்தத்துக்கா இவன் இந்த சப்தம் கேட்க கேட்க ஆமா நம்ம தத்தே தைரியம் தூ அதவா துணிஞ்சச்சு இந்த தடங்கள் எல்லாம் மீறிதான் நம்ம அப்பிரதிகதா தடங்களை மீறிதான் கங்கை வௌகம் முதன்பதி கங்கா பிரவாகம் தடைகளை வச்சுட்டு தன் சமுத்திரத்தில் நம்ம அலைகளை சேர்க்கிற மாதிரி நம்ம பிரவாகமா பக்தி நம்ம பண்ணோம்னா தான் அதை மீறி இந்த தடங்களை மீறி இவ்வளவு சத்தங்களை மீறி இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ்கள் நடுவுலையும் பாராயணம் பண்ணா தான் சபாஷ் நம்ம பாஸ். அவ்வளவு சோதனைகள் வரும் பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு, இவ்வளவு தடங்கள் வருது, எவ்வளவு தடங்கள் வருது பாருங்க. அதை மீறி தான் நம்ம பாகவத பாராயணம் பண்ணி ஆகணும். அவ்வளவு சத்தங்கள், பக்கத்துல சத்தங்கள் கூட பக்கத்துல கத்துவாங்க, பேசுவாங்க. இந்த பாகவதம் படிக்கிறோமேன்ற எண்ணமே இருக்காது அவங்களுக்கு. அவங்க பாடு கத்தின்னு இருப்பாங்க, பேசினே இருப்பாங்க. ஒரு பக்கம் பார்த்தா வேணுமனே மரத்தை போட்டு அறுத்துன்னு சத்தம் போட்டுன்னு இருக்காங்க. அது என்னமோ பண்ணுவாங்க, அது மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க, டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். அதை மீறி தான் நம்ம பாகவத பாராயணம் பண்ணணும். அதனால பாகவதம் படிச்சா இவ்வளவு சோதனைகள் உண்டு.
அதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம பாகவத பாராயணம் பண்றோம். அதனாலதான் பகவான் நாம ரொம்ப சொல்லுமா, ராம 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 ராமான்னு சொல்லிட்டு போனா இவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் கிடையாது, இவ்வளவு கஷ்டம் கிடையாது, படிக்கிறதுக்கும் கஷ்டமா இருக்காது, அதே சமயம் இவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸும் கிடையாது, நிறைய வேலைகளும் இருக்காது. இதெல்லாம் ஏன்னா இதெல்லாம் பகவத் கைங்கரியம் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல. ஆனா பழக்கப்பட்டவங்களுக்கு அந்த சிரமம் தெரியாது. ஆனா நல்ல இதுல தபஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வராது. ஏன்னா அந்த தபஸ்ல இருக்காங்க இல்லையா, அந்த தபஸ் ஆனது அவங்கள காப்பாற்றும், அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் வராபடி. ஆனா எப்போ தடவை பாராயணம் பண்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறைய வரும் கண்டிப்பா. நாங்களாம் எப்போ தடவை பாராயணம் பண்றோம், பகவான் நாமா சொல்லிட்டு அவ்வளவுதான். பகவான் நாமாவே போதுன்னு இருக்க ராமராமன், அதுதான் சொல்ல வரேன். சரி, ஓகே. அதத்ரயம் சத்யேஹ மைத்ரே உவாச்ச दृष्ट्वा आत्मानं प्रभयसं एकदा वैन्य आत्मवान् आत्मना वर्तित अशेष स्वानुसर्ग प्रजापतिः जगतस्तुषश्चापि वृत्तितो धर्मपुत्सतां निष्पादिदेश्वरादेशो यदत्रमिह जग्निवान् आत्मज स्वात्मजां यस्य विरहात्वदीमिव प्रजास विमणस्वेगः सतारः अहतपोवनम् तत्राप्यनियमो वैगानसुसम्मदे आरब्ध मुखतपसि यतः स्वविजये पुरा कान्दमूला फलाहारः शुष्कवर्णासन क्वचित् अभक्षः कदाचित् पक्षान् वायुभक्षस्ततः परम ग्रीष्मे पञ्चतपा वीरो वर्षस्पासारसान्मुनिः अखण्डमक्तशिशिरे उदगः स्तण्डिले शयः यदिशो यदवाक्तान्तः उत्तरेदा जितानिलः अक्षरादयेषु कृष्णमचरतप उत्तमम् தேன காமானு சித்தேன. அதாவது நம்ம போர் நிறுத்த பண்ண உலக அமைதிக்காக நம்ம பாராயணம் பண்றோம், அவ்வளவுதான். வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. இந்த போர் நிறுத்தப்படுறதுக்காக தான் நம்ம படிக்கிறோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு ராமநாமம் ஒன்று போதும், ஆனா போர் நிறுத்தப்படுறதுக்கு படிக்க சொல்லி நம்மளுக்கு உத்தரவு வந்தது, அதனால பாராயணம் பண்றோம், இதுதான் விஷயம். சரி, ஓகே. அதத்ரயம் சத்யேஹ மைத்ரே உவாச்ச दृष्ट्वा आत्मानं प्रवेशं एकदा वैन्य आत्मनः वर्तिता शेष स्वानुसर्गे प्रजापतिः जगतस्तुषश्चापि वृत्तितो धर्मवृत्सतां निष्पादितेश्वरादेशो यदत्तमिह जगतिवान् आत्मजेष्वात्मजां यन्यस्य विरहात्वदीम् इव प्रजास विमणस्वेगः सतरः अहतपोवनम् तत्राप्यनियमो वैगानस सुसंवदे आरब्ध उक्ततपसि यतः स्वविजये पुरा कान्दमूला फलाहारः शुष्कवर्णासन क्वचित् अभक्ष कदाचित् पक्षान् वायुपक्षस्ततः परम ग्रीष्म पञ्चतपा वीरो वर्षस्वासारसान्मुनिः आगण्डमक्तशिशिरेः उदगः स्तण्डिले शयः यदिक्षो यदवाक्तान्तः उत्तरेदा जितानिलः आरिरादिषु कृष्णमाचरतप उत्तमम् देनः क्रमानुसिद्धेन तस्थकर्मामलाशयः प्राणायामहि संसंवृत्त षड्वर्गश्चिन्नबन्तरः सनत्कुमार भगवान् यदाह आध्यात्मिकं परम योगं देनैव पुरुषम् अपचत्तु पुरुषस्तवः भगवद्धर्मेण साधुः सत्तिका यदतः सदा भक्ति भगवति ब्रह्मण्यानन्य विषयाभवत् तस्यानि या भगवतः परिकर्म सुत्तं सत्त्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुभूत्य ज्ञानविरक्तिं मदपुन् आशितेन येन चिच्चेद संशयपदं निजजीव कोशम् चिन्नान्यधिरादि गतिर्निरीह तत्त्यजे अचिनदिदम भगिनेन येन तावन्न योग गतिभिर् अप्रमत्तो यावत् गदाक्रजं कथासु रतिं न कुर्यात् एवं सवेर प्रवरः संयोज्य आत्मानमात्मनि ब्रह्मबोधदृढं काले तत्याजस्वं कलेवरम् सम्यच्च वायुं भाष्णिक्यं वायुमुत्सारयन् शनैः नाप्यं कोष्ठे शापस्ताप्यः सुदृढकण्ठशीर्षणि उत्सर्पयंस्तु तम्मुत्नि क्रमेण आवेश्य निष्प्रभः वायुं वायोषधौ कायं तेजस्तेजस्य आयुयुजत् खान्याकाशे द्रवं द्वये यदा स्थानं विभाकशः श्रीमंपसि तद्तेजस्यदो वायो नभस्यमुम् इन्द्रियोषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यतोद्भवम् बोधादीनाम् उत्कृष्य महत्यात्मनि संतते स सर्वगुणविन्यासं जीवे मायामयेन्यदात्
चाणुसयम् आत्मस्तम असो अनुसयी पुमान ज्ञान वैराग्य वीरण स्वरूपस्थो अजहत प्रभु अर्च नाम महाराक्ति तत्पत्नी अनुगता वनम सुगमार्य ततर्खा च यत्पत्यम स्पर्शनम भुवः आदिव धर्मनिष्ठया शुश्रूषया सारसदेह यात्रया नाविन्तदातिं परिकर्षिताभिसा प्रयस्कर स्पर्शनं मान निर्वृतिः देहं विपन्ना किल चेदनादिकं प्रत्युपृथिव्या तैरस्क्य चात्मनः आलक्ष्य किञ्चिश्च विलप्य सा सदी सीतामदारोपयत्तमित् अत्रिसानुनि सीतामदारोपयत्तत्रिसानुनि विदाय कृत्यं हृदिनी जलाप्लुता तत्त्वोदगम पत्र उदारकर्मणः दत्त्वा दिविस्तां स्त्री परित्य विवेश पक्ष्णीं ध्यायति भर्तृपादौ विलक्ष्याणुकथम सत्यं हृदं वेदपरं पतिं दृष्टवरवरदा देवैः देवपत्न्य सहर्षशः कुर्वत्य कुसुमासारं तस्मिन् मन्दरसानुनिः नडतस्वामरदुर्येषु रणन्ति स्म परस्परं देव्य उचुः अहो गेम वर्तुधन्या या चैवं भूपजां पतिं सर्वात्मनां पतिं भेजयज्ञेशं श्रीवधुरिव सैषानूनं भजत्वत्वम् अणु वैन्यं पतिं सदि सैषां नूनं भजत्वत्वम् अणु वैन्यं पतिं सदि पश्यतास्मादित्याचिर्दुर्विभाव्येन कर्मणा देशां दुरावं किं तन्यन्मत्यानम भगवत्पदम भवे लोलायुषो ये वहि नैष्कर्म्यं साधयन्त्युत स वञ्चित वदात्मतृक् रचन महदापवि लब्ध्वा आववर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते मैत्रेवाच स्तुवदेषु अमरस्त्रीषु अधिलोकं कथा पतुः यंब आत्मविदां दुर्यो वैन्यप्रापाच्युताशयः इत्थं बोधानुभावासुभकृतस्य भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरितम् उत्तमचरितस्य युद्धस्य दे एदं सुमहत्पुण्यं सत्तया बहितः पडेत् श्रावयत् शृणुयात्पावे सप्रदोः पदवीं यात् ब्राह्मण ब्रह्मवक्षस्ति राजन्य जगतीपतिः वैश्य परन् वेत्पतिः स्यात् सूत्र सत्तमतां यात् त्रेगत्वैदमाभरणे नरो नार्य अथवा आतुरता अप्रज सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः अस्पष्टकीर्तिः सुयसा मूर्खो भवति पण्डितः इदं स्वस्तेन पुंसाम् अमङ्गल्यनिवारणं धन्यं यशस्यम् आयुष्यं स्वर्गं कलिमलापहं धर्मर्थकाममोक्षाणं सम्यक् सिद्धिम् अभिप्सुभिः सत्यैतत् अनुश्राव्यं सतुर्नाम कारणं परम विजय अभिमुखो राजः सत्वैतत् अभियान् बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजान पृथिवे यथा मुक्तानि असङ्ग भगवत् यमलं भक्तिमुत्पहन्न भैन्यचरितं पुण्यं शृणुयात् श्रावयेत् पठेत् ऐशित्र्य विद्याभिहितं महन् माहात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतमतिर्मत्यः पार्थवीं कदिमाप्नुयात् अणुदिनमिदमादरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रतियन् विमुक्तसङ्कः भगवति भवसिन्धुपोदपादे सच निपुणां लभते रतिं मनुष्यः श्रीमद्बाहुली महापुराणं समेते चैत्रस्कन्धे त्रयोविंशत्यः श्रीहरिनमः गोपिकार्जुन गोविंद गोविंद விட்டா போதும் நம்ம பூர்த்தி பண்ணிப்போம். எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன், ஃபுல்லாக இங்கே டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணினே இருக்காங்க. இந்த மரம் தொல்லை பண்ணினே இருக்காங்க வேணும்னே, ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. ராமா சரம் ஸ்ரீராமர்ப்பணம் மஸ்தம் தான். ஸ்ரீராம ரொம்ப தொல்லை பண்ணுறாங்க. நம்ம அப்புறம் பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது. ராம 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 ராம